उसने ये भी तो बताया होगा ना तेरे को कि वो कहाँ लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है, या नहीं बताया उसने? या तो सिर्फ झूठ बोलने के लिए पैदा हुआ है जाहिल इंसान। हेलो अमीरजादन ब्रो, वेलकम, हाउ आर यू ब्रदर? Hello, brother. Welcome. Thank you for bringing me up. Thank you for inviting me to be with you. God bless you all and keep you safe. Thank you, brothers. Okay, actually, the last caller gave me an argument about Judaism. He said that if Muhammad Rasulullah ordained to make the woman sex slave, so it was as per Jews scripture. He claimed that he did just because of this, because it was mentioned in Jews and Christian book already, that if you make someone slave after war, I mean a war prisoner, so you can do sex with him or you can make him as a sex slave. It was Yes. according to Jews scripture. It is right or wrong, brother? That's totally false, and we want from him reference for that. Otherwise, he shouldn't Yeah, speak. actually, I'm also asking him to give me the reference, but he's not ready to give me the reference. So अफान, यहाँ पर ऑलरेडी अब हमारे साथ एक क्रिश्चियन आ गया है, वो भी आपसे रेफरेंस मांग रहा है कौन सी किताब में। गिव मी द रेफरेंस। अब ये भाग गया। Now he ran away. My God. No, don't run, don't run. We need you. We love you all. Please come back, and we want to talk with you. And we know you don't have reference though, but I will give you example though. I'll give you example that about your favorite, as you so call it, Hajar, the wife of Abraham and the mother of Ishmael and all that. Yes, uh, she was a certain slave, but the slave, as she was working, she gave herself whatever as a slavery, but she wasn't sex slave. Yes. Now, she gave herself after that, for like she gave herself to Abraham as her master told her, and but she was willing to do that to be better in life, and to have money, to be in better position in life. But in another way, we have another person who gave himself 7 years for life, for slavery, to have Rachel as a wife. Rachel, but this is what they call it slavery in the time of the Jews, that they gave himself Jacob. He gave himself 7 years for slavery to take Rachel as wife. Now her father tricked him, and he gave him at the night of wedding. He gave him her sister, and that's why he had to be to work 7 more years as a slave. And this is basically as a worker. It's not like this is what they called it slavery in Judaism at that time. So basically, you work, and this is your wage is to take that bride. Your wage is to take that ever. So he took the first bride, then he took the second bride, Rachel, the second time. The third time he worked 7 years to take sheeps. Like that, he will not go out of that place empty-handed. I saw so many people greeting. Thank you, brothers and sisters. God bless you and keep you safe. Thank you very much for all that Actually, love. Amir, bro, there is no need to explain that much. Actually, I just want to know that how he actually claimed it was true or not. I know that very well. When you guys claiming something, so it is on you. It is up to you to give me the reference. If you don't have any reference about that thing which is you claiming, so मेरे हिसाब से आपका जो क्लेम है that is non invalid, वो बकवास है. Okay, so thank you so much. Actually, we are welcoming you, Amir Zadan, bro. Thanks for being here once again, and you're most welcome, hardly welcome. Love you, brother. Thank you very much. Thank you for Okay, having me. let me complete. Let me talk to another caller
because my topic is basically on that today, that if anybody who is basically non-Muslim, if he actually, if he died during the nation fights or to saving the nation, so if so, can he go to the Jannah, or why he will go to the Jahannam? So basically, my my topic is this now today. So I'm talking according with Muslims about this. according to Islam, only Muslim will go to Jannah. The male of them will go to Jannah, while the female of them, 3/4 of Jahannam is full of female, according to Muhammad. So Exactly. Exactly. exactly, yes. So basically, not even all Jannah, Jahannam is full of. Basically, if any, even a Muslim, if he kill, he steal, he do whatever he do, he will go to Jannah. He will be replaced by a Jew or a Muslim. Sorry, or a Christian. Sorry for the honest mistake. It will be replaced by a Jew or a Christian. Now there is another hadith for Muhammad, and when he's saying, if the people will go to Jannah, if they steal or if they do that, he will say yes, even let me find that hadith. It's on, even if let me find that hadith. It's about, even if Okay, no problem. You take your sweet time and find that, and definitely when you will find that, so you can share a link with me in private chat. Till then, I want to talk to True Voice. He's here. Hello, True Voice भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ समीर भाई, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। आप मुस्लिम हैं? समीर भाई, आप मुझे भूल रहे हो क्या? ओह सॉरी 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 सर, मोस्ट वेलकम। अरे मैं तो काफी देर से सोच रहा था कि मैं बाहर क्या रहा, ये तो यार भूल गए समीर भाई। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। एक्चुअली वो नाम में मैं कंफ्यूज हो गया। ट्रू वॉइस के कोई नाम बात पे और भी आते हैं सनातनी, तो मुझे लगा कि वही नहीं। मोस्ट वेलकम, आपका इस्तकबाल है। कैसे हैं आप? आदाब। या आदाब भाई, बहुत अच्छे हैं। और आप बताइए कैसे चल रहा है सब? बीच में थोड़ा मिस किया जरूर, थोड़ा बिजी शेड्यूल था। और आज का स्ट्रीम सुन रहा हूँ काफी देर से आपका, बहुत ही अच्छे से आप उनको मतलब रिप्लाई कर रहे हो। जो रिसेंट अभी बंदा गया है छोड़ के, रेफरेंस नहीं दे पाया वो। अच्छा, हमारे पास कुछ कॉलर हैं, इनके साथ बात करते फिर आप बने रहिएगा। मेरे ख्याल से एक फीमेल कॉलर भी हैं, हमारी बहन है शायद, तो इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी नगमा जोहर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप बहन? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप मुस्लिम हैं बहन? बिल्कुल जी। तो बेसिकली जो मेरा टॉपिक है आज, तो मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो आप उसके ऊपर बात करना चाहेंगे या मजीद कोई और बात करना चाहेंगे आप? नहीं, उसी पे जी। तो आपको टॉपिक तो पता ही होगा, मेरा सवाल भी आपको पता होगा। मैं सवाल जी सवाल नहीं सुना है। ओके, सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए, समझने के लिए आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बता सकती हैं कि आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से? इंडिया से। इंडिया से हैं, चले, वेरी गुड हो गया। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर कोई इंडियन फौजी, कोई आर्मी वाला जो है, अगर वो मुल्क की हिफाजत के लिए या फिर वो सरहद पर लड़ते हुए मुल्क के लिए अगर वो शहीद हो गया, वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन वो मुस्लिम नहीं था, तो क्या वो जन्नत जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ओके, तो वो कहाँ जाएगा? अगर उसने ईमान कबूल किया होगा तो वो जन्नत में जाएगा, ईमान कबूल नहीं किया होगा तो जहन्नम में जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि चले, ये ठीक है, आपका जवाब आ गया है, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया, यानी कि चोरी नहीं की, जिना नहीं किया, किसी के साथ जो है ज्यादती नहीं की, किसी महिला की साथ इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया, डाका नहीं डाला, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, और उसने सब अच्छे काम किए, नेक काम किए, और फिर देश के लिए जो है अपनी जान भी दे दी, अपनी आवाम के लिए भी,
तो चलें कि उसने ईमान कबूल नहीं किया इसलिए वो जन्नत नहीं जा रहा, समझ लेते हैं, लेकिन इतने अच्छे काम करने के बाद भी वो जहन्नम में क्यों जाएगा? बहन आप मुझे बता सकती हैं? अच्छा हाँ ठीक, एक मिनट। सपोज दैट मैंने एक बात कही आपको कि अगर किसी का वो बेटा है, ठीक, किसी एक बाप है, उसका एक औलाद है, ठीक, वो उसको बचपन से पालता है पोसता है, उसके बाद फिर एक आर्मी इंडिया में भर्ती कर देता है, लेकिन वो जब मरने लगता है तो ये कहता है कि मैं, मतलब मेरा बाप वो नहीं है, मुझे नफरत है उससे, मेरा बाप कोई और है। हकीकत है, पता चला उनको। तो अब बताइए, जो उसका ओरिजिनल बाप रहेगा तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी इस बात की? ओके, अगर वो ये कहता है कि वो मेरा बाप नहीं है बल्कि कोई और है, तो हाँ। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो ये कहे कि मुझे उससे नफरत है। अगर वो ये ना कहे कि मुझे उससे नफरत है, सिर्फ वो ये कह दे कि मेरा बाप वो नहीं कोई और है, तो क्या नहीं। अब उसका बाप, नहीं सुने ना, अब आपके ही आर्ग्यूमेंट के हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूं तो आप सुन लें। तो क्या उसका ठीक। बाप उसको उस वक्त जिंदा जला देगा कि उसने ये कहा कि वो मेरा बाप वो नहीं कोई और है? अगर वो क्या बोले, सारी जिंदगी उसी की कमाई खाई, ठीक, बड़ा हुआ तो उसी के टुकड़ों पे बड़ा हुआ, लेकिन जब एक अच्छा मुकाम पाया उसने, तो वो किसी और को कहने लगा और साफ इनकार कर दिया कि वो मेरा बाप नहीं है। तो अब बताइए, पहले फादर को क्या करना चाहिए था उसके साथ? उससे पहले तो ये चीज उसको सजा देने से पहले तो उस बाप को ये साबित करना होगा कि वही उसका बाप है। अगर वो बिल्कुल। साबित नहीं कर सकता है, सुने मेरी बात, अगर वो साबित नहीं कर सकता है तो यहाँ पर कमी उस बात की है जो जिसके पास दलील नहीं है, प्रूफ नहीं है साबित करने के लिए वही उसका बाप है। क्योंकि वो तो ये बिल्कुल। कह रहा है कि हो सकता है मुझे बचपन से इसने पाला हो सकता है मेरा हकीकी बाप ये ना हो, लेकिन बिल्कुल। तो इतना कहने पर, नहीं मेरा सवाल आपसे ये था कि सिर्फ इतना कहने पर क्या वो बाप अपने उस बेटे को जिंदा जला सकता है और हमेशा हमेशा के लिए जला सकता है? हाँ या ना? अगर बाप उसे, हाँ सुनिए एक मिनट, अगर बाप उसे रोज यही बात कहे कि तुम मेरा यकीन मानो, यकीन मानो, यकीन मानो, ऐसा ना हो कि कुछ मेरे से गलत हो जाए, तो मेरा यकीन मान लो, और फिर भी बच्चा हम्म, इसी जिद पे अड़ा रहे कि नहीं आप मेरे बाप नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, तो आप बताइए, हम्म। आप उसके बाप की गैरत जहां तक उससे इस्तात उसे है, जहां तक, हमेशा हमेशा के लिए जलाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, अगर कोई भी। यही बताइए कि 25 साल अगर उसकी उम्र है लड़के की, अब 25 साल तक बाप यही कहता रहे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, किसी हद तक कोशिश करवाए, लेकिन वो सारी चीज उसके सामने, सारी चीज उसके सामने लाके रख दे कि ये सबूत है, ये दलील है, ये चीज है, लेकिन आपके फिर भी। 50 आर्ग्यूमेंट ले लिए, आपको पता है मजीद क्या प्रॉब्लम हो रही है बहन? आपको मजीद और हम्म। आर्ग्यूमेंट इसके अंदर ऐड करने की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आप खुद भी ये हम्म। महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ इतना काफी नहीं है उसको हमेशा हमेशा के लिए जलाने के लिए। तो आपको मजीद हम्म। और चीजें उसके अंदर बार बार ऐड करके अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने की आप कोशिश कर रही है, लेकिन आप कितनी भी गहराई में चले जाएं, कितने भी मजीद इसके अंदर चीजें डाल दें, फिर भी मेरा सवाल यही रहेगा, क्या सिर्फ ये मान लेना उसका कि उसका जो हकीकी बाप है वो उसका इनकार कर रहा है कि तुम मेरे बाप नहीं हो, तुमसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, क्या वो बाप उसको हमेशा हमेशा के लिए आग में जला सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल जला सकते हैं। तो ये आपका बिलीव है, क्या आपके अलावा कोई और भी ऐसा समझता है? अच्छा बिल्कुल आप मुझे बताएं, समझते हैं। क्या आप अपने बेटे को इसलिए आग में जला सकती हैं कि वो आपको अपनी मां नहीं मानता? बिल्कुल। आप जला सकती हैं? बिल्कुल, अगर मैं अपने औलाद को ये कहती रहूं हमेशा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारी माँ, वो इस बात को तस्लीम ही ना करे और कहीं और जाए, भटक जाए, वो मेरा ख्याल ही ना रखे, मतलब बेतरीके हो जाए, तो फिर मैं क्या करूंगी इसके साथ? आप ही बताइए फिर। ओके, तो आप उसको हमेशा हमेशा के लिए आग में फेंक देंगी? बिल्कुल। सीरियसली? सीरियसली? रियल। बिल्कुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे तो आपसे फिर कोई शिकायत नहीं है अगर आप अपनी औलाद को इसलिए आग में फेंक सकती हैं कि वो आपको माना माने, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि अक्सर हम्म। जो है ना दुनिया में लोग अपने माँ बाप को जो है जब वो हम्म। बुढ़ापे को पहुंचते हैं उनको उठा करके हम्म। घर से बाहर फेंक देते हैं, उनको हम्म। वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। फिर भी वो माँ बाप यही कहते हैं कि हमारे बच्चे जहां भी हैं वो खुश रहे, वो उनको जिंदा नहीं जलाते। तो लिहाजा सही अगर बात आप ये है। कह रही हैं कि आप जिंदा जला देंगी अपने बच्चे को और हमेशा हमेशा के लिए आग में डाल देंगी, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस्लाम इंसान को किस कदर तक, किस हद तक इंसान को जो है इस्लाम उसका ब्रेन वॉश करता है और किस हद तक जो है वो नफरती बना देता है इंसान को। आप इसका नमूना है जीता नहीं, जागता। नफरती नहीं बनाता है, वो सच को तस्लीम नहीं करता, इसकी सजा मिलती है उसे बस। नहीं असल में आप आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है बहन, हमने ऐसी बहुत सारे किस्से देखे हैं। देखो अब मैं अपने आप तरफ से कुछ नहीं डाल रहा हूँ, आपकी जो सोच है मैं उसी के बिहाफ पर बात कर रहा हूँ, वरना मैं तो ऐसी कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है। फिर वो अल्लाह कैसे कर सकता है जो अपने बच्चों से एक माँ, आप एक माँ के मुकाबले 70 माँ जितनी मोहब्बत करता है,
तो लिहाजा ये आपने आज साबित किया है ये बता करके कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल जहाँ जो है आग में फेंक देंगे अगर वो आपको मां ना माने। तो 1 मिनट सुनिए मेरे यहाँ पर नहीं मेरी सुने, बात सुनिए यहाँ ना। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि कुछ महिलाएं जो हैं वो किसी भी चीज के लालच के लिए वो हर तरह के, ऐसा नहीं कि मजहब में ही पाई जाती है, इस्लाम में ही पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है ऐसी महिलाएं, कुछ लोग आप जैसी, जो कुछ थोड़े से फायदे या अपने कुछ लालच के लिए, अपने किसी ख्वाहिश के लिए वो अपने ही बच्चों का जो है गला काट देती हैं, उनका खून चढ़ा देती हैं किसी को, तो उनको हमारे माशरे में डायन कहा जाता है ऐसी माओ को। अच्छा तो आप अच्छा, 1 मिनट जीता जागता नमूना है आप उसका, मेरी बहन। अच्छा ठीक है, 1 मिनट मेरी बात सुनिए आप अब। मेरे अड़ोस पड़ोस में माँ से बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने ऐसे कई वाकयात देखा है अपनी आंखों से, जो माँ रहती है लेकिन बच्चे की ऐसी करतूतों पे उनको जला देती है। तो हर माँ तो डायन नहीं हो जाती। डायन आपको पता है किसको कहा जाता है? डायन अपने ही बच्चों को खा लेती है, हमारे यहाँ तो यही हाँ, कॉन्सेप्ट समझा जाता इसलिए है। आपके यहाँ कोई वो और है तो अपने बता दें। नहीं, इस मकसद से अपने बच्चे को खा लेती है कि उसके पास पावर आए, वो एक बेहतर का। हालांकि बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं होती है, तब माँ उसकी इसको मार देती है। लेकिन यहाँ पे तो बच्चे की गलती सामने आ रही है ना। जी, उसने आपको अपनी मां मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उसको आप जला सकती हैं। तो इसी से पता चलता है ना कि इस्लाम कितना पीसफुल है और कितना जो है अमन पसंद मजहब है ये। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मुझे आपसे इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछना, अगर आपको कोई और बात करनी है तो आप कर लें। मेरा जवाब आपने दे दिया और मुझे आपने लाजवाब कर दिया। आज जिंदगी में पहली बार मैं ये कहता हूँ कि एक्स मुस्लिम समीर आपके सामने लाजवाब हो गया। इस्लाम से आपको और कोई शिकायत हो तो आप कहे, मैं इंशाल्लाह उसका मसला आपको बताती हूँ। नहीं, मेरी जितनी शिकायतें थी ना आज तक बहन, वो आपको सुनने के बाद सारी की सारी साकार हो गई। अच्छा, आप मुझे अभी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपने इस्लाम क्यों छोड़ दिया? मुझसे गलती हो गई, मैंने इस्लाम छोड़ दिया आपको सुनने के बाद, तो यही लग रहा है मुझे। हाँ, तो अब आप एक्सेप्ट कीजिए अपनी गलती को। Can you इतना अच्छा translate मजहब this, मुझे brother? कैसे छोड़ना चाहिए था जिसमें आप जी अपने ही बच्चों को जला सकते हैं, अगर वो आपको माना माने। बिल्कुल। चले, अभी आप तो आज तो आपने मुझे पक्का मोमिन बना दिया, और मैं जो एक्स मुस्लिम समीर जो 140 डिबेट करने के बाद तकरीबन 47 मुल्लाओं से और मौलवियों से नहीं हारा, वो आज आपके सामने सरेंडर कर गया। थैंक यू। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, ये आपका स्ट्रीम है, सुनिए 1 मिनट। ये आपका स्ट्रीम है और मैं आपको बोलने का मौका ना दूं तो आप मुझे क्या कीजिएगा, लीव कर दीजिएगा इसमें से। नहीं, मैं तो आपसे बात ही कर रहा हूँ बहन। नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ समझने के लिए कि मैं आपको बोलने का अगर मौका नहीं दूं तो आप क्या कीजिएगा, लीव लीव कर दीजिएगा। इसलिए कि आपकी जितनी इस्ताअत है आपने उतना कोशिश किया, तो बस वही हद तक है कि जिसकी जितनी इस्ताअत है उतना कोशिश करता है। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। वैसे तो मुझे तवक्को नहीं रही, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही आपसे सवाल पूछने की, कसम से मैं डर गया अच्छा पूरा पूरा। कसम से हाँ मैं डर ठीक गया है। आपको सुनने के बाद, पूरा डर गया हूँ। लेकिन अगर आपकी हाँ, इजाजत हो तो छोटा सा सवाल पूछ लूं आपसे। कुर्सी छोड़ के उठिएगा नहीं, बस बोलिए। अरे आप कहें तो मैं कुर्सी से भी खड़ा हो जाता हूँ बहन, आपको देख करके जो कुर्सी पर रह जाए उसकी मजाल। आप गलत बोल रहे, देखे कहाँ, आवाज सुन रहे हैं। चले, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ मेरी प्यारी बहन। जी। आप मानती हैं कि आप कम अकल हैं, आधी अकल है आपकी? अच्छा, आपको लगा क्या? मेरे नजर में तो आप बड़ी इतनी होशियार है, जिसने एक्स मुस्लिम समीर को हरा दिया तो उससे ज्यादा अक्लमंद तो कोई हो नहीं सकता। तो मैं आपसे तो पूछ रहा हूँ कि आप इस बात को आप मानती हैं कि आप कम अकल हैं? आप सुनिए, जब जब इस बात को आप तस्लीम कर ही लिए तो मैं क्या बोला, अगर मैं बोलूंगी मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाऊंगी 1 मिनट में, तब क्या मान लीजिएगा? मेरा सवाल आपसे जो है उसका सीधा अगर आप जवाब देंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, तो क्या मैं आप तो यही प्रेशर, कह रही हूँ कि अरे सुनिए ना, अगर मेरी बहन मेरी बात तो सुन ले, प्यारी बहन, हम्म, मेरी बात तो सुन ले। मुझे आप ये कहिए। बताइए, क्या आप इस बात को मानेंगे अगर कोई आपको ये कहे कि आपकी अकल जो है वो आधी है, आप बेवकूफ है, कम अकल है आप, और आपका अच्छा, ईमान भी आता है, कोई इस बात को कहे तो आप इस बात को मानेंगी? अब मेरी बात सुनिए, अगर मुझे कोई अभी कह देगा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो मैं मान लूंगी क्या? जो हकीकत है वो हकीकत है। तो आप इस बात को नहीं मानेंगे? सीधा जवाब दें मुझे, मानेंगे या नहीं मानेंगे, सीधा जवाब दे, जलेबी क्यों बना रही है? हाँ चलिए ठीक है, नहीं मानेंगे। ओके, तो अगर इस आपका बात जो को रसूलुल्लाह कहे, आ? अगर रसूलुल्लाह कहे इस बात को कि आपकी अकल आधी है और आपका ईमान आधा है, फिर भी नहीं मानेंगे? आप 1 मिनट सुनिए, अब मैं ये आपको कहूंगी कि आपके पास वाकई अकल कम है तो आप इस बात को तस्लीम करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्योंकि आप ये बताइए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कब्र मुबारक में भी है तो मुझे क्यों आके बोलेंगे अभी? ओके,
अगर उन्होंने पहले बोला हो जब वो जिंदा थे, जब कब्र मुबारक से बाहर थे। देखिए, अब बोला हो किया हो ये फर्क है। अभी मैं आपको कहूंगी कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे करेंगे, तो ये फर्क है। बात वही कहिए जो हकीकत है। जो हकीकत है वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपकी अपनी किताबों से, आपके अपने रसूल अल्लाह, आपकी अपनी किताब सही अल बुखारी के अंदर, जो कि सबसे ऑथेंटिक किताब मानी जाती है कुरान के बाद, उसके अंदर जी आपके बिल्कुल। रसूल अल्लाह की हदीस मौजूद है, जो कि ये कहते हैं आपके रसूल अल्लाह के औरतें जो हैं वो कम अकल हैं, आधी अकल हैं, और उनका ईमान भी आधा है। आप इस बात पर बिलीव करती हैं? अब मैं बता रही हूँ कि कम अकल किस लिए कहा गया है। जी, किस लिए? क्योंकि औरतें जज्बाती होती हैं। खैर, सबसे पहली बात, ठीक है। ऐसा उस हदीस में लिखा है कि औरतें जज्बाती होती हैं इसलिए कम अकल हैं, या कुछ और लिखा है? देखिए, हदीस में अगर चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को, लिखा हुआ कि कम अकल है, तो वो इस मुद्दे पे होगी। इस चीज का नहीं है कि वो मतलब कुछ भी बोले कुछ भी समझे। कम अकल का मतलब ये भी होता है कि वो नादान है, समझे। मतलब किसी टॉपिक को ऐसे एकदम लिखा है कि वो सीरियस। नादान है इसलिए कम अकल है, ये भी आप तो दिखा आप सकती हैं मुझे, तो या आप कोई और ये ही रीजन बताइए। लिखा? तो ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि किस क्या रीजन लिखा हुआ। सबसे पहली बात आप इसे उर्दू में हाँ, कीजिए अब मुझे। आपने अब आपने अब आपने अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल हाँ। किया। अब मैं आपको बता देता हूँ किस रीजन पे बताया गया है। हदीस सामने अच्छा, स्क्रीन पर लेके आ गया हूँ, सुनिए सुनिए फुल सुनिए फुल सुनिए सुनिए, स्क्रीन मेरी कर बात देता हूँ। सुनिए। मेरी बात तो नहीं, सुनिए एक बार। अब सुन लीजिए, अपने रसूल अल्लाह का कलाम सुन लीजिए। जब उर्दू कुरान में कीजिए। कुरान पढ़ा उर्दू जाए, में कीजिए। बहन उर्दू में बहन मेरी उर्दू में बात उर्दू में उर्दू में उर्दू में उर्दू में कीजिए पहले इसको, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। उर्दू में रखता हूँ बहन, ये लीजिए, उर्दू में रख देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ये ले उर्दू में लेंगे, ठीक है। हाँ, ये ठीक। हदीस नंबर 304 है, सही अल बुखारी की 304। अब यहाँ पर ओके। क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल हम्म अजहा या ईद उल फित्र में हम्म ईदगाह तशरीफ ले गए। वहां हम्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ए हम्म औरतों की जमात, सदका सदका करो। क्यों हम्म, सदका करो? क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा तुम ही को देखा है। किसको? औरतों ठीक को। ठीक। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि आपने जहन्नम में हम ही लोगों को देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लान तान बहुत करती हो और बिल्कुल। शोहर की नाशुक्री करती हो, बावजूद हम्म अकल और दीन में हम्म नाकिस होने के, अकल और हम्म दीन में नाकिस नाकस। होने के, मैंने हम्म तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अकलमंद और तजुर्बेकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। यानी कि तुम अकल में भी आधी हो, ईमान में भी आधी हो, उसके बाद भी तुम एक तजुर्बाकार और एक होशियार इंसान को भी दीवाना बना देती हो। हम्म औरतों ने अर्ज किया कि हमारे दीन और हमारी अकल में नुकसान क्या है? वो जो आप अटकलें लगा रही थी ना कि क्यों कहा गया है दीन अकल आदि और हम्म इस्लाम ईमान आधा क्यों है, तो अटकलों का जवाब यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि क्यों अकल आदि और क्यों दीन आधा है। ओके, कि नुकसान क्या है या रसूल हम्म अल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं है, यानी कि आधी नहीं है? उन्होंने कहा, हम्म जी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि हम्म वसल्लम ने फरमाया, बस यही उनकी अकल का नुकसान है कि उनकी गवाही आधी है, इसलिए वो आधी अकल है। फिर आप हम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरतें हाइजा होती हैं, यानी कि जब उनको मेंसेस आते हैं, तो हाँ वो हाँ। नमाज नहीं पढ़ सकती और ना ही रोजा रख सकती हैं? औरतों ने हम्म कहा, ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि हम्म वसल्लम ने कहा, फरमाया, यही उसके दीन का नुकसान है। लिहाजा इस हदीस से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाजे किया कि आपकी अकल भी आधी और आपका हम्म। ईमान भी आधा। आप मानती मेरे भाई बहन, आप आधी अकल की हैं? तो मैं इसलिए मैं खुश इस बात की कि मुझे आधी अकल और आधी ईमान पे ही जन्नत मिल रही है। अब ये बताइए, इससे बड़ी चीज और क्या होनी चाहिए। नहीं मिल रही है, कैसे नहीं नहीं हो मिल रही, आप रही है। देखिए। मसला मसला यही तो आप है ना कि नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि ज्यादा मैंने तुम ही लोगों को जहन्नम में देखा। हाँ, तो एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप सबसे पहली बात, औरतों की ये चाल है, उनकी फितरत है ये, कि चार लड़की अगर बैठ जाए तो टोले मोहल्ले जितनी भी औरतें लड़की होती सबकी बात एक ही तरफ कर लेती। तो इसमें गलती किसकी है? अब मैं ये कहूंगी कि मैं जिंदगी भर बैठ के गलती करती रहूं और मुझे जन्नत मिल जाए, मतलब मैं जहन्नम में नहीं जाऊं? ये तो महाबेवकूफी है फिर। मेरा सवाल आपसे जन्नत और जहन्नम में जाने के मुतालिक नहीं है। मेरा सवाल ये है, जनाब जन्नत रसूलुल्लाह ने ये कहा है वो कि तो है ना। आपकी तो अकल मैं जो है, अब ये अब आप बताइए, सुन एक मिनट रहे हैं, सुनिए। हाँ, मुझे मेरी लगता है मेरी अब बात आप सुनिए। घबरा रहे हैं, मुझे लगता है अब आप नहीं घबरा गई हैं। बिल्कुल, आप ऐसा तो बिल्कुल मत घबराई नहीं सोचिए। है मैं तो फिर बिल्कुल घबराने वाली वैसे नहीं हूँ। आप नहीं है तो ऐसा फिर मेरी, बिल्कुल मत सोचिए। तो अगर आप आप घबराई नहीं मुझे है ना तो आपने सुनिए बात एक कर मिनट। ली है, मुझे एक जवाब मिनट। देने दें, क्या मसला है बहन, क्या अच्छा मसला है? ठीक है, जवाब दे मेरी रहा बात हूँ सुनिए आपको। ना एक बार। अगर आप ये कह रही हैं, मेरा आपसे जिस बात पर बेस पर आया कि आप रसूलुल्लाह की बात पर अकल ईमान रखती हो,
हर चीज पर, और आप अपने बच्चे को इसलिए आग में जला देंगी क्योंकि अल्लाह का ऐसा हुक्म है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को इस हद तक फॉलो करते हैं कि आप अपने बच्चे को भी जिंदा जलाने के लिए तैयार हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो क्या आप इस बात को मानती हैं कि आपकी अकल आधी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको बोली हूँ कि अल्लाह ताला का कलाम नहीं कि मैं अपने बच्चे को जिंदा जला दूं। ये मैं अपने अंदर की बात कह रही थी, ठीक, सबसे पहली बात। और ठीक है, दूसरी चीज ये, हाँ, और दूसरी आप चीज ये आपकी अकल आधी है या नहीं है, हाँ या ना? हाँ, तो मैं तो सुनी हाँ, मेरी अकल आधी, मैं सुनी मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात सुनी पहले कि बस अकल तो आधी फिर का अगर मतलब। आपकी अकल आधी है, नहीं 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 नहीं, रुक जाइए। अगर आपने खुद ही मान लिया कि आपकी अकल आधी है, आप किस लिए मेरे साथ डिबेट कर रही है जिसकी अकल मुकम्मल है? अच्छा, एक मिनट मुझे बताइए कि अकल आधी किसकी होती है, पता है? एक नादान की होती है, ठीक है, और नादान किसी को ज्यादा प्यारा को महिलाओं कहा की अकल जाता है। आधी होती है, महिलाओं की अकल आधी, आपकी गवाही भी मेरे मुकाबले आधी है और आपकी अकल भी मेरे मुकाबले आधी है, इसीलिए चलिए ठीक है, एक आपने मिनट खुद मान बताइए। लिया, अगर मैंने नहीं अक्ल कहा यार। आधी है, सुनिए, चलिए, हाँ ठीक है, मैं तस्लीम, मैं कहाँ बोल रही नहीं, मैं तो शौक से कह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रसूलुल्लाह ने ये बात कहा है, चलिए ठीक है, मैं शौक से कह रही हूँ, अच्छा मैं कहाँ कह रही हूँ नहीं। ठीक है, अगर अच्छा, ये आपको इस अगर बात पे फक्र है, आपको इस बात पे फक्र है कि रसूलुल्लाह ने आपको ये कहा कि आपकी अकल आधी है? देखिए, एक मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर ये रसूलुल्लाह ने ये बात कहा है कि अकल औरतों की आधी होती है, तो खुशी है मुझे इस बात की। सबसे पहली बात कि मुझे पता चल गया कि चलो औरतों की अकल आधी होती है, एक सबसे पहले साइंस की बात मालूम चल। सुनिए, अब एक मेरी बात सुनिए। अरे, हंसने से सुनिए, एक बार सुन के लीजिए मेरी बात। ओ माय गॉड, ओ अरे माय एक गॉड मिनट बहन, मैं तो समझा था, हंसिए, सुनिए, सुने बहन, मैं तो हंसिए समझा मत। था कि आप जब उस हम्म वक्त बात कर रही थी ना अपने बच्चे के मुतालिक, मुझे लगा कि आप शायद जज्बाती हो गई हैं या आप ईमान की हलावत आपके अंदर ज्यादा आ गई है। लेकिन अब हम्म। आपका ये जवाब सुनने के बाद तो मुझे कंफर्म यकीन हो गया है कि आप तो वाकई ब्रेंडेड ज़ॉम्बी हैं, अच्छा, अब मेरी बात 100%। सुनिए। तो एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप मतलब आधी दिमाग के सामने माथा ये क्या बोले, हाथ जोड़ दिए, मतलब हार मान ली इतना एपिसोड के सामने, ये वो, तो आप भी तो जज्बाती हो गए थे तुरंत। अरे कम से कम समझ तो लेते कि मुझे कितना इल्म है। आप तुरंत हाथ टेक लिए थे, मैं ये नहीं, वो मैंने दुनिया। मैंने तो सरेंडर कर दिया बहन पूरी तरीके से आपके सामने, वही अब भी वही तो सरेंडर हूं मैं 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 तो तो अब भी यही सोच सरेंडर रही हूँ हूँ ना। आपके। आप 2 मिनट मेरे से बात की, आपको तो सरेंडर कर ली, मतलब आपको खुद पे यकीन नहीं है इतना। मैं तो ये सोच रही हूँ बहुत। चले ना खैर, ना वो बातें। मुझे कतई यकीन नहीं है आपकी सोच के सामने, जब आपने क्लियरली जो बात कह दी उसके सामने तो मेरे पास आर्गुमेंट ही नहीं है बहन। मैं ये साबित करने के लिए सारी डिबेट करता हूँ जो आपने सामने से एक्सेप्ट किया। मैं इसको साबित करने के लिए सारी डिबेट करता हूँ, जो आपने सामने सामने से ही एक्सेप्ट कर लिया तो अब मेरे पास दलील ही नहीं बची कोई, मैंने फुल सरेंडर कर अच्छा दिया। ठीक है, अब मेरी बात, अब मेरी भी सुनिए, ठीक है, चले। वहां पे आधी अक्ल की बात की गई है। अब ये बताइए मुझे कि वहां पे यही बात की गई है कि आधी अक्ल वाली औरतें जहन्नम में जाएंगी, नहीं ना? बस एक खूबी बताया है कि हाँ इसके अंदर आधी अक्ल है, बस बात खत्म। ये तो नहीं कहा कि ये आधी ये अक्ल आपको है तो खूबी ये लगती जहन्नम में है? चली जाएगी। मैं आपको ये अब कहूं कि आपकी अकल आधी है, ये आपको खूबी लगती है? बिल्कुल, मुझे तो अच्छा लगता है कि हाँ मेरे अक्ल आधी है। तो मतलब अब देखिए, बच्चे को, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए, अब छोटे ओ बच्चे भाई ही हैं। एक मिनट, आपको देख करके ना, सुने मेरी बहन, आपको देख करके आज हाँ मुझे यकीन हो गया है कि जो हमारी मुसलमान बहनें हैं ना, उनका इस्लाम हम्म, में क्या रुतबा है और उसके बाद भी वो क्यों मुसलमान हैं। मुझे आपको देख करके और सारे व्यूवर्स को भी आज आपको देख करके हाँ, समझ में आ रहा होगा कि आपकी मुसलमान बहनें क्यों मुसलमान हैं। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा, मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप जैसे मतलब मुसलमान हिंदू में कन्वर्ट कैसे हो गए। मुझे कभी कभी सोच रही थी कि मैं सभी मतलब था कैसा था नहीं था, फिर इसमें कन्वर्ट कैसे, मतलब मैं सोच रही थी, अब मुझे मालूम चल गया कि आपको बस समझ गए मैं। आप दिन पकड़ते हैं लेकिन ऊपर ऊपर दिन पकड़ते हैं। मैं वहां पे बताइए मुझे कि ये बात क्या लिखा हुआ है कि कम अक्ल वाले औरतें जहन्नम में जाएंगी, नहीं ना? है तो है। अब बताइए, छोटा बच्चा रहता है, नादानी करता है, लोग उसकी कम अकली पे खुश होते हैं नहीं नहीं और नहीं, उसे। वहां ये नहीं लिखा हुआ, आप सही कह रहे हैं, वहां ये नहीं लिखा कि कम अकल होने की वजह से जहन्नम में जाएंगी। वहां ये लिखा हुआ है कि कम अकल होने और मेंसस आने की वजह से जहन्नम में जाएंगी, जो आपको अल्लाह ने दिया है। अच्छा, लेकिन दिखाइए तो मुझे थोड़ा सा, गौर करके दिखाइए तो, जूम करके। ये क्या लिखा हुआ है, आपने क्या पढ़ा अभी? क्या? आपने क्या पढ़ा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ से कम हदीस शुरू अकल। होती है, पूरा कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट से समझिएगा। पहले कहा कि रसूल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाया ईद उल फित्र की ईदगाह तशरीफ ले गए। इसका कॉल आ रहा है। Brother, can you include us in the subject just to know what is it about? Yeah, actually, I'm your brother. She is our sister. I'm Muslim.
and she is claiming that if my son deny this thing that I am her mother, I am his mother, then I will burn him alive. And the second thing she claimed, when I asked her that are you half fine? Your witness is half, and you will go to the Jahannam because uh, you get menstruated every month, and just because of that, due to that thing, you cannot worship Allah and you cannot keep fast. So you will go to the Jahannam, and you have half half intelligence deficiency in your intelligence. So actually she has been accepted this. Yes, I have deficiency in my mind, and I have deficiency in my iman also. Wow. Unfortunately, they accept blindly what Muhammad said in his books for them. Unfortunately, sad. It is sad. While there is leaders in the best countries, in the biggest countries, you'll find women are leading countries. Let's say, they were queens. They were the one who Muhammad married with, Khadija. She was a trading lady. She was really good. Let's say Queen of Sheba. Let's say there were Angela Merkel. She was leading Germany, and so on and on and on and on. Women are not less than man at all. I believe in equality in that. So I don't believe that women are less than man at all. But in Islam, Muslims, Less intelligence. yeah. Not Okay. Let me ask one more question to our sister. मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ बहन. जैसा कि आपने ये हिमसेल्फ खुद एक्सेप्ट किया है कि अगर रसूल अल्लाह ने ये बात कही है औरतों के मुतालिक कि वो आधी अकल हैं, तो क्या इस लॉजिक के हिसाब से जनाब रसूल अल्लाह की जो 11 अजवाज मोहतरात हैं वो भी आधी अकल हैं? अगर देखिए ये बातें अगर सब औरतों के लिए है तो ठीक है, क्योंकि अगर चलिए ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? अगर वो अजवाज मुतहरात कम अकल थी तो जन्नती भी तो है, इस बात को तस्लीम क्यों नहीं करते आप? अब मैं क्या बोलूं यार, कसम से एक पहला शख्स मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा देखा जो मुझे हर जगह लाजवाब कर देता है. मैं क्या ही बोलूं अभी, जब आप उनकी अजवाज मोहतरात को भी आधी अकल मानने के लिए तैयार हैं, अपने आप को भी मानने के लिए तैयार हैं, मैं क्या आर्गुमेंट रखूं आपके सामने? आई एम स्पीचलेस. सुनिए मेरी बात. Amir Jannat bro, she also agreed to this thing also, that the wife of Muhammad is also half brain. Even Muhammad agreed that. Allah agree on that. You know that. although Muhammad told them take half your deen, your religion from this redhead, and it was Aisha. So how come you can take your half of your religion from half a brain woman? So do you agree to take half your religion from half a brain woman? Is that correct? एक मिनट. हेलो जी 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 बोलिए सिस्टर. अच्छा मुझे एक चीज बताइए बहन, एक छोटा आप मुझे आपने जो भी बात कही ना, मैं उसके मुताबिक पूछ रहा हूँ, मुझे याद आ गई चीज. अच्छा अगर आप ये कह रही हैं सुने, अगर आप ये कह रही हैं कि अजवाज मोहतरात भी जो है वो आधी अकल है जनाब नहीं कर रही हूँ, एक मिनट सुनिए, मैं नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं, याद रखिएगा. वो भी तो महिला, वो भी तो औरत है ना बहन. आपने मान लिया, आपने हिमसेल्फ माना कि औरतें आधी अकल है, ये रसूल अल्लाह का कॉल है, आपने उस पर अग्री किया कि अगर रसूल अल्लाह कह रहे तो बिल्कुल है, अल्लाह कह रहा तो बिल्कुल है. अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आधी कल कह भी दिया और वो जन्नती औरत है तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे ये बताइए. मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको कि मुझे प्रॉब्लम क्या है. मुझे प्रॉब्लम ये है कि रसूल अल्लाह ने ये कहा है कि आप अपना आधा मजहब जो है ना वो हजरत आयशा से लो. अब आप आयशा से जब आप आधा मजहब लोगे जो खुद आधी अकल है, तो आपका जो मजहब है, आपका जो ईमान है, वो मुकम्मल होगा या आधा होगा?
ये मुझे बताओ। बताइए, आप देखिए मुझे बताइए, वो आधी अकल हो के नौज बिल्ला अगर वो चली गई जन्नत में, तो मैं उसी को फॉलो करके आधी अकल हूँ, तो मैं जन्नत में क्यों नहीं जाऊंगी? मुझे ये बताइए। नहीं, मुझे जन्नत का सरोकार ही नहीं है ना इस वक्त। इस वक्त तो मुझे महिलाओं से ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है बात करने में। अच्छा मुझे बताइए कि आप ये मानती हैं कि रसूल अल्लाह की जो नबूवत है वो आधी है या मुकम्मल है? आप ये बताइए मुझे कि सबसे पहली बात कि मर्दों के नहीं बारे में तो नहीं बात नहीं 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 कर नहीं, मेरे रहे। सवाल का जवाब सवाल नहीं होगा। मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए कि क्या हाँ। आप ये मानती हैं कि रसूल अल्लाह की जो नबूवत है वो हम्म। आधी है? आप ये मानती हैं कि नहीं मानती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो अगर आप ये नहीं मानती तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी नबूवत की सबसे पहली और अकेली गवाह जो है वो हजरत खदीजा है, जिसकी अकल आधी है। वो गवाही तो नहीं, एक मिनट सुनिए सुनिए, एक मिनट, हंसने से कोई पागल तो नहीं है। नहीं, इसका तो एक मैं अलग मिनट, से सेपरेट पार्ट डालूंगा रियली। मजा आ ऐसा नहीं। गया। मेरी एक बात सुनिए, आप सबसे पहली बात कि भाई आप तो ऐसे हमारी भी हंसते तो सुनना है यार। हेलो जी जी जी, कौन बोले? अगर हेलो सुनिए, समीर अगर भाई। जी मेरी बात पाकिस्तानी सुनिए, नजीब साहब, अगर बोले सुनिए सर सुनिए आपका सुनिए। इस्तकबाल है। बोले सर क्या कह रहे हैं? एक मिनट बहन, एक मिनट रुके जरा, कुछ सर पूछ रहे थे। मैं तो जी जी। ये कह रहा हूँ कि हमारी बैटरी लो हो रही है, हम तो बहन की बातें सुन रहे हैं, कुछ हमें भी मौका दें भाईजान, हम भी आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा चले 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 जरा, आप मौका ले लें। वैसे बहन से मैं गुफ्तगू जो कर रहा था बड़ी अच्छी चल रही थी। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है सर। बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो समीर भाई मैं ये कहना चाहता हूँ। जी हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी को कोई ये तो समझाए कि पहले जन्नत जहन्नम क्लियर तो कर लें। मैं भी पाकिस्तान से तलक रखता हूँ, मुसलमानों के घर में पैदा हुआ हूँ। मुझसे ज्यादा बहन इस्लाम नहीं जानती। मैं हदीस का भी 2 साल मैंने दौरा किया है। मैं आपको एक हाँ। मशवरा देता हूँ। जी हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप मुकम्मल करें। जी जी। भाई तो फेक आईडी बना के आ वो गए बहन और जी हदीस सवाल तर्जमान आपके पे सारी है ना कि और ये मुझे जन्नत बोलने जहन्नम देना। के बारे में और जो आप एक बातें मिनट कर भाई, रहे हैं ना कि अकल के बारे में। प्राउडली मुस्लिम साहब, जब कोई बात कर रहा हो ना तो बीच उसके दरमियान नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। आपको मौका मिलेगा। प्राउडली मुस्लिम साहब, आपको स्क्रीन पे इसलिए ऐड किया गया है कि आपके साथ गुफ्तगू की जाए, बातचीत की जाए। आपको मौका मिलेगा जनाब, थोड़ा जरूर तहमुल रखें, उनको बात तो मुकम्मल करने दें। जी पाकिस्तानी जस्टिस साहब, आप बात करें। जी जी, मैं बात कर रहा हूँ भाई समीर। जी तो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको अपना नजरिया पेश करना चाहता हूँ, लेकिन आपने काफी देर कर दिया है। तो अभी तो मैं बस मुख्तसर सी बात करूंगा, इतनी लंबी चौड़ी कर नहीं करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपसे लंबी गुफ्तगू करूंगा। अभी मैं सिर्फ मुख्तसर आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो यह है कि जन्नत जहन्नम को कन्फर्म तो कर लेना, फिर तो ये तो बाद में सोचेंगे ना कि जिसमें जाएगा कौन कौन नहीं जाएगा। जन्नत जहन्नम है भी सही ना, ये तो बहन से पहले क्लियर कर लेना। जी 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 बिल्कुल। तो वो आपको दलील पेश कर देंगी अपनी। जी नगमा बहन, आपने सुना उनका सवाल। उनका सवाल ये है कि क्या आप ये साबित कर सकती हैं कि जन्नत जहन्नम एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती? बिल्कुल। चलें उनको साबित कर दें कि जन्नत जहन्नम एग्जिस्ट करती है। किस तरीके से आप मानती हैं? आप सूरह वाक़या पढ़े, उसमें जन्नत और जहन्नम के पूरे पूरे वाकयात लिखे हुए हैं। नहीं, मेरी बात सुनो बहन। हेलो हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब ये कहते हैं कि जब कुरान नाज़िल हुआ तो लोग पत्तों पर लिखते थे, कभी कहते हैं ये हड्डियों पर लिखते थे, कभी फिर बाद में ये किताब बनी है। ये उस वक्त तो दौर भी नहीं था, ये स्टूडियो वगैरह नहीं थे, मतलब वो इस तरह के प्रिंट वगैरह नहीं होते थे। तो ये कुरान की आज जो तरतीब आपने बनाई है, आप ईमानदारी से, मैं खुद मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ, मैं साबित कर देता हूँ। पहली बात है तो कुरान में न कोई तरतीब है, न तुम्हारे को इस्लाम में। इस्लाम तो मिलता जुलता भी नहीं है, शिया कुछ कहता है, सुन्नी कुछ कहता है। इस्लाम है किधर, मुझे बना के दिखाओ। अच्छा एक मिनट मुझे बताइए, न शिया इस्लाम पे है और न सुन्नी इस्लाम पे है। इस्लाम हमेशा कुरान जिस जहाँ पे बात किया है मुसलमानों के बारे में बात किया है। न शिया का नाम लिया, न सुन्नी का नाम लिया, न अहले हदीस, न बरेलवी, किसी का नाम नहीं लिया। ठीक है। सबसे पहली बात आप ये जाने कि इस्लाम में सिर्फ मुसलमानों का नाम लिया गया है और ईमान की बात की गई है। बाकी आप जो फिरका वारियत में जा रहे हैं तो ये अगला अलग मसला है, सबसे पहली बात। ठीक है। जी जी, मेरी बात सुने ना। मुसलमान है क्या? मुसलमान हमें दिखाओ ना, हमें मुसलमान किधर है? मुसलमान पाकिस्तान में है, कतर में है, अरे अरब भाई में है, आँख खोलेगा तो मुसलमान है दिखेगा किधर? ना।
एक मिनट मेरी बात सुनिए। मुसलमान आज सिर्फ आईडी और क्या आधार कार्ड का मुसलमान बना हुआ है। ईमान वाला अगर मुसलमान आपको देखना है तो सहाबा की जिंदगी पलट के देखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पलट के देखे। अगर वाकई आपको मुसलमान देखना है तो ठीक है। ये आप जो आइकन लगा के घूम रहे हैं ना कि मुसलमान क्या है नहीं है, ये फिजूल है आपका आइकन। मेरी मेरी बात सुनो, अगर हुसैन के कातिल सहाबा या सहाबा की औलाद निकले तो फिर बताओ तुम्हारा इस्लाम किधर गया? अच्छा तो आप पहले साबित तो करिए इस बात को। मैं आपको कह रहा हूं ना कि मैं इस्लाम को भी नहीं, इसलिए नहीं, मैंने इस्लाम की छोड़ा, मैंने इसलिए छोड़ा है कि करबला की हिस्ट्री पढ़ने के बाद पता चला है कि इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले या तो सहाबी थे या सहाबा के बेटे थे। आप तारीख उठाएं, करबला की पढ़ें, अपनी मुसलमानों की किताब, किसी भी किताब में पढ़ें तो ये सुनिए मैं साबित सुनिए करने आपको की बताता जरूरत हूं, नहीं है मैं निर्मला बताता जौहर हूँ बहन, जदीद कौन आपको सा। आपको जानती है हिमसर। मैं भाई मेरी भाई बात की बात में एक ऐड कर रहा हूँ, सुनिए। नगमा बहन, आपकी रहनुमाई के लिए। ये आपने हम्म। कहा कि साबित करें, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हजरत हुसैन का जो कत्ल किया है वो यजीद ने किया, और यजीद हिमसर अमीर मुआविया का बेटा है, जो कि एक सहाबी हाँ, है। यजीद तो माविया के अच्छा बेटा है, माविया बिन अबी सुफियान के, अबी सुफियान की बेटी हजूर एक का घर है। मिनट मुझे सुनिए। बताओ अच्छा तुम्हारे घर से अच्छा जी। कातिल साबित है बहन जी? अच्छा मेरी बात सुनिए सुनिए सुनिए। अगर बेटा रहता है, सॉरी बाप है, और उसका औलाद अगर काफिर हो चुका है तो इसका ये कतई दलील नहीं बनता है कि बाप जहन्नम भी हो जाएगा। ठीक है, बेटा जो किया है वो उसका सजा पाएगा, बाप जो किया वो उसका सजा पाएगा। तो आप बाप को बेटे से ओके, बिल्कुल ना बहुत मिलाएं। अच्छा आर्गुमेंट आ गया जी इनकी तरफ से, मजा ही आ गया। अगर मैं आपको ये हाँ साबित कर दूं कि अमीर मुआविया ने हसन का कत्ल करवाया जहर दिला करके, फिर आप क्या करेंगी? तो एक बात बताइए, अगर अमीर मुआविया अगर मुसलमान है ठीक है, लेकिन उसके अंदर ईमान नहीं अरे है तो वो भाई, मुसलमान। खलीफा है, मुसलमान छोड़े, खलीफा है आपका। अगर खलीफा खलीफा है कातिब है, वही है, 6 महीने कातिब है, वही रहा, कुरान का कातिब वही है, मैं साबित करता हूँ उनकी किताबों से। तो ठीक है, आप साबित कीजिए। मैं साबित करता हूँ, आप अमीर बिल्कुल माविया साबित। कातिब वही है। और उसकी जो अपनी है वो अभी सुफियान, उसकी जो मतलब अभी सुफियान की जो बेटी है वो हजूर के घर है। मैं साबित करता हूँ, मैं यजीद के, अमीर माविया को, सारे सहाबा को, अशरा मुबशरा को साबित करता हूँ। बहन जी आप किसको फुद्दू लगा रहे हैं? आप उन लोगों से बात कर रही हैं जो मैं मानता हूँ साइंस के लिहाज से जानते होंगे, लेकिन इस्लाम की अगर कोई बात है आप मुझसे करें, मैं आपको बताता हूँ इस्लाम क्या है। बिल्कुल शौक से बताया, सुनने का समीर मैं कुछ मुझे शौक बोलूं? है बहुत। ओके, मैं एक सुपर चैट लेकर के स्क्रीन से हटा देता हूँ, उसके बाद आप मजीद गुफ्तगू कीजिएगा। नहीं मैं कुछ बोलूं समीर? हाँ, बस एक सेकंड रुके सर, मैं आपको भी मौका देता हूँ, एक नहीं सेकंड अभी रुक को जाए, अभी मुझे चले जाए, सुपर बहन भी चले चैट। जाएगी, वो भी चले जाएगा। भाईजान 1 मिनट रुक जाए, मुझे एक सुपर चैट ले लेते, फिर आपके साथ मजीद बातचीत होती है। ट्रू फ्री जी ने कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, ऊपर वाले इस्लाम में माँ ना बना, मोमिन मर्दों को बच्चे पैदा करने की ताकत बख्श, आमीन आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुपर चैट के लिए। और एक्स एथीस्ट पुजारी बहन कह रही है हमारी, आमिर जैदान, आई होप यू आर एंजॉयिंग द स्ट्रीम। Definitely, Yeah. Amin and Zanan don't know how we are talking about right now, because actually my brother don't understand Urdu that much, but she is a specialist of Arabic because she is native Arabic and she understand English as well. So actually, Amir Zadan brother, I will bring you in this discussion after this argument of our Muslim brother, proudly Muslim. So I wanna Sure. invite proudly Muslim in this discussion right now to claim his argument. जी आप प्राउडली मुस्लिम साहब अपनी बात आप जो रखना चाहते हैं रखें सर। देखिए मैं तो अभी बहन की जो बात चल रही है उस पर करूंगा, फिर मैं जन्नत जहन्नम में बात करूंगा। देखो सऊदी का जो भी बादशाह मालूम है आपको, मोहम्मद बिन सलमान। जी जी जी। देखो अगर अहले हक उलमा उसके खिलाफ कुछ बोल दे तो उसको जेल में डाल देता है वो, या तो उसको मार देता है, ठीक है ना। हम्म। इसी तरह जो आप यजीद की बातें कर रहे हो, हजरत हुसैन जो थे वो हक पर थे। और हक वाला इस्लाम जब उनको कहा गया तो उनका उनका उनको ये कर दिया गया, ठीक है ना। ओके। मोहम्मद बिन सलमान तो भी अपने आप को मुसलमान कहता है ना। अच्छा, मैं इस आर्गुमेंट पे आपसे एक सवाल छोटा सा करता हूं ताकि हम समझ लें कि हक पर कौन था। आप मुझे ये बताइए कि जनाब रसूल अल्लाह की एक हदीस है कि मेरी 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 जो कौम है वो कभी भी जो है ना वो नाहक पर जमा नहीं हो सकती। आप मुझे तादाद के एतबार से बताइए, तादाद उस वक्त यजीद के साथ वालों की ज्यादा थी या हुसैन के साथ वालों की ज्यादा थी, किसकी ज्यादा थी? देखो क्या बोलिए। कौम का मैंने मतलब क्या आपसे होता है ये पहले ये सवाल बताइए किया अच्छा। कौम कि को तादाद से हुसैन के डिफाइन करने साथ, क्या होता है? नहीं नहीं 1 मिनट रुकिए बहन, मैंने आर्गुमेंट पहले रखा है अपना, बाद में सवाल किया है। मेरा आर्गुमेंट ये है कि जनाब रसूल अल्लाह ने हदीस के अंदर ये फरमाया कि मेरी कौम, मेरी उम्मत जो है वो कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी, वो सिर्फ जमा होगी हक पर। तो मैं ये जानना चाहता हूं
कि यजीद के जो साथ वाले लोग थे वो कसीर तादाद में थे या हुसैन के मानने वाले कसीर तादाद में थे उस वक्त? कौन थे जनाब? गुड सवाल, गुड सवाल। मेरे नजर में तो हजरत हुसैन के मानने वाले ज्यादा होंगे। अगर हजरत हुसैन के मानने वाले ज्यादा थे तो यजीद कैसे उन पर गालिब आ गया चंद अफराद पर? क्योंकि आपके ही करबला के किस्से में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो सिर्फ 70 या 80 अफराद थे, जबकि यजीद के पास तो लाखों की फौज थी। अरे भाई, धोखा देके किसी को भी मारा जा सकता है, ठीक है ना? अरे मेरे भाई, आपके रसूलुल्लाह की हदीस झूठी साबित हो जाएगी अगर हम यहाँ पर आपकी बात का इत्तेफा कर ले। देखो देखो एक मिनट बहन, हम हर हदीस को सही नहीं मानते, ठीक है? जो ऑथेंटिक हदीस है हम उसको सही मानते हैं। अच्छा, 1 मिनट से नहीं मेरी बात। लश्कर की तादाद कितनी थी, ना आपको मालूम ना मुझे मालूम, ठीक है? आपको मालूम है तो आप बताइए। ठीक, सबसे पहली बात मुझे मालूम है 9 लाख की तादाद है और 84 जो है 84 बच्चे, और उस इमाम हुसैन का जो टोटल लश्कर था उनमें मर्द जो थे वो 72 थे, 84 मस्तूरात थे, 84 मतलब और मस्तूरात और बच्चे, ये टोटल तादाद जो थी वो 84 लोग थे। मैं आपको साबित करता हूँ करबला पड़ी है। तो कुल मिलाकर के 80 या 84 की तादाद थी मर्दों की। तो आप मुझे बता दें 80-84 जमा थे हक पर, और बाकी जो हजारों और लाखों की फौज थी वो नाहक पर जमा थी। देखो, अहले हक जो है ना वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। है। जनाब रसूलुल्लाह की हदीस को मद्देनजर रखते हुए अहले हक कभी कम नहीं हो सकता, वरना जनाब रसूलुल्लाह की हदीस झूठी हो जाएगी। देखो, यजीद के जो मानने वाले थे, हो सकता है उसमें भी कुछ अहले हक हो, ठीक है ना? अच्छा, ये तो नहीं हो सकता कि सारा गुमराह हो। फिर हुसैन के मानने वाले कैसे अहले हक हो सकते हैं? देखो, आप जिसकी बात है, अभी तो जन्नत जहन्नम में बात चल रही है, आप जन्नत जहन्नम में बात कीजिए, ठीक है? मतलब आप इस आर्गुमेंट पे मुझसे बात नहीं करना चाहते, आप भाग गए इससे। आप हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से दोहराएंगे एक, प्लीज? Okay, let me share something with you because I want here to bring Amir Zaidan in this discussion to explain more. मुझे पता है कि आमिर ज़ैदान भाई कुछ एक्चुअली आर्गुमेंट रखना चाहते हैं. So let me share the screen first and then I will share something with you guys. जी, आमिर ज़ैदान bro, I want to keep you in bring in this discussion and I want to share this screen. Let me share with you. Then I will request you to explain this. Please, okay. So here is it. So mic is your, Amir Zaidan. Bro, what is this? I want to understand. Sure. You can see what is this? Yes, let me enlarge it a bit. Okay. No problem. I will translate for my viewers. So we will go one by one, line to line. Ji. أنبئ أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه بغداد ثنى الحسين بن مكرم I will pass all that بن جعفر بن الزبير الزبري whatever قال ثنى على بن عاصم على This is chain of narration basically. Yeah. This is chain of narration actually. Yeah, go ahead. He said from it's being called to, and he said I heard khutbah, like a speech of Abu Bakr. Abu Bakr. वो कहते हैं कि मैंने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना. Okay. وعمر بن الخطاب and Umar as well بن الخطاب وعثمان بن عفان और उमर से भी وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما والخلفاء هلم جرة and all the caliphs and so on إلى يوم هذا until this day. فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة رضي الله. And I didn't hear the words from person better than person, like creation or a creature better than the one who Aisha, better than Aisha رضي الله عنها. So it was the best one is رضي الله عنها عائشة. فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن. أفخم like a high quality, luxurious, and أحسن and better
than Aisha, from the mouth of Aisha. Okay, so let me translate till here. Please. वो कह रहे हैं कि उन्होंने, जो इसके रावी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने सुना अबू बकर से और उमर बिन फारूक से, उमर बिन खत्ताब से और उस्मान इब्ने अफ़ान से और अली इब्ने अबी तालिब से और तमाम खुलफाए राशिदीन से कि आयशा जो है वो तमाम खल्कियत में, तमाम क्रिएशन में एक बेहतरीन खल्कियत जो है वो हजरत आयशा हैं. जी, गो अहेड. It's finished until here, until the bottom. So you have to lift it up. So basically when you claim sorry, तो बहन अभी आपने कहा है कि वो हदीस के मुताबिक अगर तमाम महिलाओं, तमाम वुमन के मुताबिक वो हदीस है तो उसमें अजवाज मोहतरात भी आती हैं, लेकिन ये स्पेशली हदीस जो है वो ये बताती है कि जितनी भी खल्कियत अल्लाह ने की है, जितनी भी क्रिएशन की है, उसमें आयशा को सबसे बेहतर बताया गया है. She was also a woman. Now what you will say? जी बहन, can you lift it up? Do you want to show just that all of them they said about Aisha she's the best person who speaks? This is all what this is the hadith. It's all speaking all about that. Here is in Urdu. I can read it as well. हजरत अखफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर खलीफा के आज तक खुतबे सुनता आया हूं, लेकिन जिस अहसन और फसी व बालिग अंदाज में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुफ्तगू फरमाया करती थी, मैंने उनमें से किसी को भी ऐसी गुफ्तगू करते हुए नहीं सुना. बेसिकली ये जो एक रावी है ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो गुफ्तगू सुनी है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, इससे बेहतर कलाम उन्होंने किसी का नहीं पाया. सॉरी, इसमें क्या तकलीफ है आपको? Can I ask the sister why she think herself less than her husband, let's say, in her brain? Why she think, let's say, her brain is, let's say, function halfway? Why she think like that? Doesn't she do most or her life doing more than her duty, even to serve her kids and her husband, and even maybe she do a job outside the house and everything? Why she think herself she's less than everybody, like half a brain? हाँ, exactly. I will translate to her. वही मैं सवाल इनसे कर रहा हूँ. Actually, I asked the same question to her. मैं आपसे वही पूछा है कि जब एक सहाबी, एक आदमी ये कह रहा है कि मैंने उमर बिन खत्ताब को भी सुना, अली इब्ने अबी तालिब को भी सुना, उस्मान को भी सुना और दीगर तमाम खलीफाओं को सुना, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुफ्तगू करती थी, मैंने उनसे ज्यादा ज़हीन, उनसे ज्यादा बेहतरीन कलाम किसी का नहीं पाया. इतना बेहतरीन कलाम करने वाली वुमन भी आपके रसूलुल्लाह के मुताबिक और आपके अल्लाह के मुताबिक हाफ ब्रेन है, आधी अकल है. जी बहन, तो ये बताओ मुझे कि अगर हाफ ब्रेन है और इतनी अकल वाली बात कर रही है तो आपको क्या जाता है? इससे पहले ये बताइए. इससे हमें ये जाता है कि आपके रसूलुल्लाह को और आपके अल्लाह को अम्बदानी पता, कुछ नहीं पता उनको. तब तो आप अब मेरी सुन बात है, आधी अकल वाले को इतनी नॉलेज हो सकती है. रसूलुल्लाह, even your Allah doesn't know anything, nothing they know. They claim a false claim actually over here and said that women have a half intelligence and deficiency in her intelligence, but many people are claiming that they heard Aisha as well, they heard many Khalifat as well, but Aisha was superb, awesome in her claim and in her argument, but your Rasulullah claiming
that women have a half brain. समीर भाई, जी हेलो जी जी जी, पाकिस्तानी हिस्सा। समीर भाई, हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं बोल रहा हूँ जनाब। जी, ये बहन जो कह रही है ना कि इतनी कम उम्र में इतनी मतलब अच्छी बात कर रही है, इस बहन से ये पूछो जो जंग जमल हुई थी, जो अली के मुकाबले में आयशा ने लड़ी थी, उससे जंग जमल इसलिए कहते हैं कि जब अरबी में ऊंट को जमल कहते हैं, तो ऊँटनी पे जो है आयशा सवार थी और अली के मुकाबले में लड़ी, उसमें हजारों सहाबी शहीद हुए। वो कम अक्ल नहीं थी तो और क्या थी? इसको मेरे साथ इसकी बात कराओ। अरे भाई, तुम्हारा पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हारे पेट में अरे क्यों मेरे दर्द हो पेट रहा में है? दर्द है ना, मैं कम अक्ल साबित यार कर तू देता हूँ जवाब जो नहीं हजूर की मरना चाहता है, मर जा। अरे भाई, तू एक जहाँ मिनट, मैं जाके जवाब देने मरना के लिए चाहता है, तैयार मर जा हूँ। जाके। नहीं, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, सुन तो ले मेरी बात। जी एक मिनट, आप जी स्क्रीन से हटाए थे उसको। यही तो प्रॉब्लम है समीर आपकी, जब आप कोई मैंने नहीं बंदा हटाया। बोल हेलो रहा है तब से हेलो स्क्रीन बहन, से हटा देते हैं। हेलो बहन, मैंने नहीं हटाया उनको, मैंने नहीं Can हटाया you उनका translate? उनका अपने आप Can you ड्रॉप हुआ, वो अपने translate? आप गए, मैंने उनको नहीं हटाया। Can you translate that for her, please? या आई ऑलरेडी अब ट्रांसलेटेड ये बता, ब्रदर। इंसान Yeah, but can you translate the following for her, please? Sorry, what? Come again? What you said, Amir brother? Can you can you translate the following? What I was gonna say, please. That do Okay. you think, Aska, do you think that Okay. having menstruation, do you think that having Actually, menstruation will make actually, she doesn't say anything important. She's just claiming that what problem you have if she was no, deficient no, because in intelligence and what? no, because her prophet said that she have deficiency in her brain because she's having menstruation. Does she think? Exactly. Does she Exactly. I think? said the same thing to her that when your Rasulullah claiming that a woman have a half brain and deficiency in her intelligence, so then how can anybody claim like this that Aisha was better than every Khalifa? Every Khalifa. Yeah, but does she think by having menstruation, does that mean she's leaking intelligence from between her legs? ओके, Ask her लेट मी that. ट्रांसलेट। आमिर भाई आपसे ये पूछ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको मेंसेस जो आते हैं, मंथली पीरियड्स जो आते हैं, उसकी वजह से आपकी अकल जो है वो आधी हो जाती है, अकल आपकी जाया हो जाती है और आपका ईमान आधा हो जाता है? आपको ऐसा लगता है वाकई? बिल्कुल, जी जी। क्योंकि इन 6 दिनों में इंसान अल्लाह से मतलब नमाज के जरिए नहीं मिल पाता है, तो इंसान का ईमान जो है ना वीक होने लगता है। हत्ता कि ये नहीं है कि ईमान खत्म ही हो जाता है, थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। शी इज अग्री टू दिस आल्सो, आमिर ब्रदर। God bless you, sister. God bless you. I'm glad I met you today. आई एक्चुअली मैं आपसे बहन हार गया। आमिर ब्रदर, आई एम गोना सरेंडर फ्रंट ऑफ हर। डू यू आल्सो वांट टू डू? सो यू कैन डू। सो फाइनली मैं ये घोषणा करता हूं, एक्स मुस्लिम समीर इस बहन के सामने हार गया और मैं बा आवाज़ बुलंद कलमा पढ़ना चाहता हूं। क्या आप मुझे कलमा पढ़ाएंगी? अगर आप मजाक की नीयत से पढ़ रहे हैं तो फिर मैं क्या बोलूं आपको? नहीं अरे आपने मुझे साबित कर दिया कि आप आधी अकल है और मेंसेस आने की वजह से आपका दिमाग भी जायल हो जाता है और आपका ईमान भी जायल हो जाता है। तो मेरे पास चारा कोई नहीं है ना इसके अलावा कि मैं आपके सामने कलमा पढ़ लूं। व्हाट यू विल से नाउ? कोई If it is काफिर me, अगर दिल से तौबा नहीं करे ना तो फिर वो मजाक ही बन जाता है, ठीक है? if it is me, sister, I will be proud of you to have you as a sister, not have have a brain, sister. I will be proud of you to have you as a real sister and not looking down on yourself. I wish you to look up on you and be really focused on how you will be. How can you do for this world and for your kids instead of thinking about burning them or whatever it is. Think about how can you be good for them and they will be good for you, and they shouldn't be even denying you because that will be a shame, because you look like smart woman. You shouldn't. You are a smart woman. You are not less
from anyone. You are really, I think, more intelligent than Muhammad himself. So I think I will be proud of you to be my own sister. So God bless you. Exactly, exactly. Okay, let me take some super chat. Pintu Sharma, brother, thank you so much for your contribution. And we have Proud Muslim back. हमारी बहन ने बोला उसको क्यों निकाल दिया भाई, मैंने नहीं निकाला, वो अपने आप ही चले गए थे और अभी वो नाम चेंज करके आए हैं. Anyway, समीर भाई, let me read. Atis Pooja, Amir Zadan, okay, मैंने पढ़ लिया है. I'll take it already. And this one from Sachin Devkar. थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन. प्रणाम, मैं यहाँ 40% यूट्यूब को नहीं दूंगा, आप कंफर्म करें. जी एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच. आप मुझे जो है फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से आप हमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो. वो डायरेक्ट हमारे साथ पास क्रेडिट हो जाता है. ट्रू फ्रीजी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन. समीर भाई, इस मोमिना को बख्श दो, अगर ये दीन से फिर गई तो इसके बच्चे फ्यूचर में स्ट्रीम सुनकर इसके साथ क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, तो कहेंगे कि तुम हमारी माँ नहीं हो, और क्या कहेंगे हमारी इस बहन को. तब वो सहम जाएंगे, डर जाएंगे, हमारी बात को फॉलो करेंगे. जी डर जाएंगे, देखो डराना चाहती है बहन. राघव जाजी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन. आयत ऑफ फार्मिंग 2:23 के नाजिल खुल के बताएं. अब जी वो महिलाएं जो है वो मर्दों की जो है खेती है इस्लाम में. अल्लाह खुद कहता है सूरह अल बकरा की 223 में कि जो औरतें हैं वो तुम्हारी खेतियां हैं, तो तुम जिस तरफ से चाहो उनको जोतो. अब मुझे नहीं पता जोतने से मुराद क्या है, हमारी बहन शायद बेहतर जानती होगी. अल्लाह एक मिनट मेरी बात सुनिए. आप तफसीर पढ़े इस चीज का? नहीं, मैं तफसीर पे नहीं जाता, ट्रांसलेशन ही इतनी भद्दी है तो तफसीर में चला गया तो मैं तो शायद. एक मिनट आप मुझे ये बताएं पहले कि खेती किसको कहा जाता है. सबसे पहले मुझे ये बताएं. जी आप बता दें किसको कहा जाता है खेती. मुझे तो इतना ही पता है, खेती उसको कहता है जिसमें फसल उगती है. हाँ ठीक. और फसल देख के इंसान खुश होता है या गम होता है? पता नहीं, जितनी ज्यादा फसल होगी इतना ज्यादा खुश होता है इंसान. तो बस वही सोचिए. तो खेती एक नेमत हुई जो इंसान गल्ला. मेरी बात सुनिए. मेरी बात सुनिए. नहीं, अगर आप इस आर्गुमेंट से क्या समझाऊं बहन. बेसिकली आप मान रही हैं कि आप बच्चे पैदा करने. अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनिए. आप मेरी बात सुनिए पहले. अगर आपको वाकई इस चीज का जवाब चाहिए तब 2 मिनट पहले मुंह खामोश करके रखिए, ठीक है? सबसे पहली बात, ठीक है? अब आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी की खेती जमीन है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको, वो जिधर से जाए, ठीक है, वो उसकी जमीन है, सबसे पहली बात, ठीक है? और जब इंसान अपनी जमीन पे कदम रखता है तो उसको महसूस होता है कि ये वाकई मेरी जमीन है और मुझे इससे खुशी होता है, वो सुकून हासिल करता है उससे. और जब उसमें फसल आती है तो वो तमाम चीज मेहनत हर कुछ भूल के वो इस चीज को लेके बैठ जाता है कि वाकई आज जो मैं मतलब बरसों पहले जो मैंने खेती उगाया था, आज वो मेरी फसल देने पे आगे तो इंसान बंदा उस टाइम में खुश होता है या गम होता है? मुझे ये बताइए. तो इस्लाम ने औरतों को मुकाम दिया है, जन्नत के पैरों के नीचे जन्नत दिया. आपने ये बात. असल में मैं आपको एक चीज बता दूं बहन, आपका ये क्लेम गलत था कि औरत के पैरों के नीचे जन्नत है. औरत के पैरों के नीचे जन्नत नहीं बताई, सिर्फ माँ के पैरों के नीचे जन्नत बताई है, अगर वो माँ बने तो. हाँ, तो औरत सुन ले, आपकी बात आ गई है. अब मेरा जवाब कहलाती सबसे पहले. नहीं, अब आप मेरा जवाब सुन लें क्योंकि आपकी बात आ गई है. अब मैं जवाब दे रहा हूँ. आपने ये कहा है कि औरत खेती है मर्दों की और वो फसल के लिए है, और फसल देख करके हर एक इंसान जो है वो खुश होता है. बहुत अच्छा आर्गुमेंट है. लेकिन आपको पता है कि आप मुझे एक जवाब देंगे. एक छोटा सा सवाल है, मुझे माफ कर देना मेरी बहन के मैं तुमसे ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा जो क्लेम है अब मुझे ऐसे सवाल तुमसे पूछने पड़ेंगे क्योंकि ये आपका कुरान कहता है. मुझे ये बताइए कि क्या महिला के साथ दूसरे रास्ते से अकद करने पर, दूसरे रास्ते से सेक्स करने पर क्या फसल हो सकती है? दूसरे रास्ते से इजाजत है ही नहीं. ओके, अगर मैं आपको दिखा दूं कि इस आयत की तफसीर में, क्योंकि आपने तफसीर का नाम लिया है, अगर मैं आपको डोंट इंटरप्ट मी. अगर मैं आपको ये दिखा दूं आप की तफसीर दुर्र मंसूर से कि उसमें दूसरे रास्ते से आपके साथ करने की इजाजत है, तो मैं एक मिनट सुनिए. मैं तफसीर इब्ने कसीर पढ़ती हूँ, आप मुझे तफसीर इब्ने कसीर का दिखाएं. मैं ये क्यों दुर्र मंसूर पे आपका ईमान नहीं है? एक मिनट, मैं दुर्र मंसूर को जानती ही नहीं हूँ. सबसे पहली बात
आप ये कहते दुर्रे मंसूर जो है वो झूठी तफसीर है, मैं उस पर ईमान नहीं रखती, बात खत्म हो जाती है। एक मिनट मुझे बताइए, मैं दुर्रे मंसूर को जब जानती ही नहीं तो उसके बारे में झूठ क्या बोलूं मैं तफसीर इब्ने कसीर को जानती हूँ। अब मुझे नहीं, एक मिनट आप रसूलुल्लाह को जानती हैं, जानती है उनको? तो आप तफसीर इब्ने कसीर दिखाइए, वरना आप दुर्रे मंसूर, जब मैं उसको मैं नहीं जानती उसको, तो आप तफसीर इब्ने कसीर दिखाइए मुझे। अगर आप दुर्रे मंसूर को नहीं जानती हैं तो आप मुझे ये बताइए कि आप रसूलुल्लाह को जानती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। ओके, कैसे जानती हैं जब आप उनसे कभी मिली ही नहीं? कुरान बता रहा है, हदीस बता रही है। जी, कुरान बता रहा है, हदीस बता रही है, और आपने कहना कि आला हदीस किताब सही बुखारी है, सही बुखारी वाज़ेह करती है, फिर मुझे कुरान और हदीस में, एक मिनट, मुझे कुरान और हदीस से ये साबित करें कि कुरान और हदीस अलाउ करती है कि आप इब्ने कसीर की तफसीर पढ़ें, दिखाएं कहां लिखा हुआ। एक मिनट, आपको जिस लैंग्वेज, अभी देखिए आपको अरबिक नहीं आती थी, आपने सपोर्ट लिया किसी चीज का, तो अब ये तो मत कहिएगा कि आपकी मजहब सनातनी है। मुझे अरबिक आती है नहीं आती, इसका फैसला आप नहीं करेंगे, इसका फैसला मैं करूंगा। और मेरे पास अब आप अरबिक कहां से ले आई इसमें? हेलो, अरे भाई आप इसमें अरबिक कहां से ले आई? मैं किसका सवाल कर रहा हूँ? मेरे पास अरबिक जानने वाले बच्चे 2 नंबर पे आमिर ज़ैदान। आप करेंगे उनसे अरबी में बात? नहीं, आप उनसे अरबी में बात क्या करेंगे आमिर ज़ैदान। आप समझ उसका इंसान काबिल नहीं हो जाता। एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले, फिजूल बका झूठ उसका। अरे सुनिए मेरी बात पहले। भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर आप तफसीर इब्ने कसीर को मानती हैं तो आप मुझे किसी कुरान की आयत है हदीस में दिखा सकती है जहां तफसीर इब्ने कसीर को मानने का हुक्म दिया गया हो? है कि ये तो बेवकूफ वाला, एक मिनट, ये तो मतलब बिना बेवकूफ वाला सवाल। एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये तो बेवकूफी वाला सवाल है सबसे पहले। अरे तो भाई जब ये आप चीज मैं कह रही हूँ कि तफसीर को मानती हैं, दुर्रे मंसूर को नहीं मानती, तो दुर्रे मंसूर को आप इसलिए नहीं मानती क्योंकि उसको जानते नहीं है। तो आप अब इब्ने कसीर को इसलिए मानती हैं क्योंकि आप उसको जानती हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कौन सी हदीस और कौन सी कुरान की आयत में लिखा है कि आपने इब्ने कसीर को मानना है? मेरी बात, आप मेरी बात को गलत राय ले जा रहे हैं। मैंने कब कहा कि मैं दुर्रे मंसूर को, जो भी मैं उनका नाम जानती हूँ, हिसाब से चल रहा हूँ। तो नहीं, आप मेरी बात को गलत ले जा रहे। सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं उसको नहीं जानती हूँ, तो मैं उसका तफसीर पढ़ी भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे उसको मैंने वही तो पूछा हाँ, है कि आप उसको नहीं जानती हैं, तो आप रसूलुल्लाह को भी तो नहीं जानती। कभी पर्सनली मुलाकात हुई है आपकी उनसे? तो देखिए मैंने पढ़ा ना उसके बारे में। एक मिनट सुनिए, मैंने पढ़ा ना, कहाँ पढ़ा उनके बारे में आपने? ओके, कहाँ पढ़ा उनके बारे में आपने? मैंने कुरान पढ़ा, सीरतुन नबी पढ़ी। ओके, तो वहां पर जहां पर आपने सीरतुन नबी पढ़ी और कुरान की जो आयतें आपने पढ़ी हैं, क्या आपने वहां पर कहीं तफसीर इब्ने कसीर के बारे में सुना है? मैंने तफसीर क्यों पढ़ा जाता है मुझे ये बताइए पहले। बेवकूफी वाला सवाल झूठ उसका बात को घुमा रहे हैं। अरे मेरी बहन, आप बेवकूफी वाला देखिए जीतने के लिए मेरी बात सुनने पहले आप, बेवकूफी वाला जवाब नहीं है। जवाब इसलिए आ रहा है ये क्योंकि आपने ये कहा है कि मैं तफसीर इब्ने कसीर को मानती हूँ। तो तफसीर इब्ने कसीर के बारे में तो कुरान की आयतों में भी नहीं लिखा हुआ ना जहां से आप रसूलुल्लाह को मानते हैं। हद हालत है, मतलब आप समझते नहीं है बात को, बस झूठ उसका बकरा है। अरे मैं मेरी बात अगर सुन तो आपने लीजिए। नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुर्रे मंसूर जो है वो स्कॉलर नहीं है या उनकी तफसीर नहीं है या वो झूठी है, ऐसा कतई नहीं है। ये मुझे ये बताइए कि जब मुझे दुर्रे मंसूर से एक मिनट सुनिए, आप दुर्रे मंसूर का पढ़े हैं तो आपने जब भी हवाला दिया तो दुर्रे मंसूर से दिया, ठीक, तफसीर की। मैंने भी 1-2 बार आपका वीडियो देखा तो आपने दुर्रे मंसूर का ही नाम, आप इतने सारे राइटर है तो आप उसका क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आपने नहीं पढ़ा उसके बारे में। भाई मैं तफसीर तो इब्ने बस वही कसीर का चीज भी हवाला देता हूं। तो मैं कह रही हूँ कि आप तफसीर इब्ने कसीर का हवाला दीजिए, बहस करने की जरूरत, बहस करने का अजीब है। अब मैं का डिमांड नहीं किया मुझे ये बात खत्म। आप मुझे कह रही हैं, एक मिनट, आप मुझे कह रही कि आप दुर्रे मंसूर को नहीं मानती? हद हालत, मैंने कहा कि भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप मानती है दुर्रे मंसूर को या नहीं मानती? हाँ या ना में जवाब दे मुझको। देखिए बिल्कुल मैं उसको सबसे पहली बात नहीं जानती हूँ, ठीक है। हाँ एक मिनट सुनिए, मैं उसको जब उसके बारे में नहीं जानती, मैं उसके बारे में कभी डिटेल पढ़ी ही नहीं हूँ। मुझे याद तो एक मिनट सुन लेना मेरी बात। वो मैंने आर्गुमेंट आपका सुन लिया कि आप उसके बारे में नहीं जानती, उसको नहीं पढ़ा। मैं ये पूछ रहा हूँ अगर आप उसके बारे में नहीं जानती, उसने नहीं पढ़ा, उसके बाद मेरा आपसे ये सवाल आ रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि दुर्रे मंसूर जो है आपके एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, बहुत अर्ली स्कॉलर हैं,
और उनपे आपके इस्लाम के तकरीबन 90% लोग जो है इस बात पर एतमाद रखते हैं कि वो एक सही ऑथेंटिक आलिम है। यार एक मिनट यार, बीच में आप जब बोलती है ना बहन मेरी, तो मेरा फिर जो होता है ना दिमाग खराब होता है, क्योंकि जब मैं आपके बीच में नहीं बोलता आप क्यों बोलती हैं? सुन ले पहले। आप बोलते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, तो क्या अब आपका ये अकीदा है या आपका ये बिलीव है कि वो सही नहीं है, वो गलत है? क्या आप ये मानती हैं? देखिए, सबसे पहली बात, ठीक है, अगर वो आलिम है, लिखे हैं, तफसीर किए हैं, तो बेहतर है, मैं उसका पढ़ूंगी, मैं उसको मानूंगी, क्यों नहीं मानूंगी भाई? ये तो आप अलग सवाल कर रहे हैं। मैं अगर बात खत्म हो गई, आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं थी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ उसी आप बस, मैं तो आपको इतना ही कहता हूँ, अगर दूर मंसूर का निकाल रहे तो यजीद बिन रोमान के, आप सुन लें मेरी बात। नसाई ने यजीद बिन रोमान की तारीख से अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मर्द का अपनी औरत के दुबर में जमा करने को में कोई हर्ज नहीं जानते थे। अब दुबर किसको कहते हैं आप समझ गए होंगे। मैं तो आपको पहले ही बोली, 1 मिनट सुनिए, किसकी तफसीर है? जमा करने में कोई हर्ज नहीं जानते थे। एक मिनट सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा एक मिनट आप। ने सुनन में मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है कि मैं मोहम्मद बिन काब कुर्जी रहमतुल्लाह अलैह के पास था। एक आदमी आया और कहा कि औरत के दुबुर में जमा करने के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो उन्होंने फरमाया ये क्या है जी, ये सखई है कि कुरैश में से उनसे सवाल किया, यानी अब्दुल्ला बिन अली बिन साइब से, तो उन्होंने फरमाया ये गलत और गंदा फैल है, अगरचे हलाल है, अगरचे हलाल है। जी हाँ, ये हलाल है। तो अब आप मुझे ये बताएं, खेती से मुराद ये है कि अब वो आपके साथ चाहे दुबर से करे चाहे फरज से करे, आप इसको पसंद फरमाएंगी? खेती साहिबा, ये बताइए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। समीर थोड़ा अदब से बात कर ले, अदब से बात कर ले समीर भाई। मैं बिल्कुल अदब से बात कर रहा हूँ। खेती मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह कह रहा है। वाले में कुछ अदब नहीं कहता, हमने क्यों करे भाई? लेकिन मैं कह रहा हूँ अल्लाह कह रहा है, खेती साहिबा कह रहा हूँ। समीर देखो, जहां तक बात है तफसीर की, तो तफसीर में रसूलुल्लाह नहीं कहते, ठीक है, अइम्मा इकराम सब कहते हैं। इसे भी पहले नॉलेज इसका रख लो तुम, सबसे पहली बात है। और दूसरी चीज ये कि मैंने आपको जब कहा है कि आप तफसीर इब्ने कसीर का निकालिए तफसीर, तो आपने क्यों नहीं निकाला? आप दुर्रे मंसूर का क्यों निकालिए, ये बताइए मुझे पहले। दुरे मंसूर भी तो मुसलमानों की किताब है ना, अगर आप नहीं मानते तो इसका मतलब है आप फिर मुसलमान भी नहीं। अगर आप दुरे मंसूर पे ईमान नहीं रखती मेरी बहन, तो दुरे मंसूर भी आपको पढ़नी होगी, तब हमसे सवाल करें। आपको पूरा इस्लामी किताबों का हवाला हो, अगर आपके पास बुखारी का या सनद इब्ने माजा का कोई हवाला नहीं है, तो आप हमसे बात कर भी नहीं सकती हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर इंडिया के बारे में पता होगा, अब मैं बोलेगा पाकिस्तान जाके वहां बैठ जाओ, पाकिस्तान में ये है, वहां जाओ, तो मैं जानूंगी तब तो। सबसे पहली बात, मैं वहां मेरी नॉलेज रहेगा तब तो। मैं आपको जब कह रही हूँ कि आप ये निकाले, तो आप क्यों नहीं निकाले मुझे ये बताइए। जहां अगर मैं इंडिया में, तो मुझे इंडिया का सिर्फ नॉलेज है, तो आप इंडिया की बात करें ना सिर्फ। तो आप, अगर मैं आपको कह रही हूँ मैं तफसीर इब्ने कसीर पढ़ती हूँ, मुझे उसका दिखाई, आप तो क्यों नहीं दिखा रहे मुझे ये बताइए पहले। हर हदीस दूसरी किताब में नहीं होती। अब सही बुखारी की कुछ ऐसी हदीस है जो अभी इब्ने कसीर में नहीं है, इब्ने कसीर की कुछ ऐसी हदीस है जो दुरे मंसूर में नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट इब्ने कसीर को, एक मिनट बात सुनिए, इब्ने कसीर को मेरी बात सुनिए, इब्ने कसीर। वेट, आपने सवाल कर लिया है, और आपने अपने सवाल करने के बाद ये कहा है कि मुझे ये बताइए, तो अब आई थिंक बारी मेरी है बताने की। तो आप थोड़ा सा सब्र करें, तहम्मुल, पानी पिए, आप ज्यादा गर्म हो रही हैं। मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि मैंने आपको दुर्रे मंसूर क्यों पेश की, और मैंने आपको इब्ने कसीर जो है क्यों पेश नहीं की। आप ये खुद जानती हैं कि आपके अपने इस्लाम के अंदर अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग राय होती है। किसी टॉपिक पर इब्ने कसीर कुछ कहते हैं तो दुर्रे मंसूर कुछ कहते हैं, दुर्रे मंसूर कुछ और कहते हैं तो इब्ने कसीर कुछ कहते हैं, जलालुद्दीन अल सयूती कुछ और कहते हैं, और बाकी अलग जो दीगर उलमा इकराम है उनका फैल, उनका कॉल कुछ और होता है। यहाँ पर ये मेरे लिए आर्गुमेंट नहीं है कि यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है। अगर आपका एक भी स्कॉलर, एक भी सहाबा,
एक भी आपका जो है ताबईन तबे ताबईन इस बात को कह रहा है कि ये हलाल है, हालांकि ये गंदा फैल है। वो ये भी तो कह रहा है कि गंदा फैल है, वो ये तो नहीं कह रहा कि अच्छा काम है। वो ये कह रहा है कि हालांकि ये गंदा फैल है लेकिन ये हलाल है। तो लिहाजा यहां पर हम उसके आर्ग्यूमेंट को लेंगे और आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब ये आपके ऊपर है बहन कि आप उसको मानना चाहती हैं या नहीं मानना चाहती। अगर आप ये कहती हैं कि मैं उसको मानना नहीं चाहती, ये चली गई है, खैर चले। अगर आप उसको सुन रही है तो आप सुन लीजिएगा। अगर आप उसको नहीं मानती हैं तो आपको ये कहना होगा अलल ऐलान कि मैं इसको नहीं मानती, तो लिहाजा मुझे दूसरा पेश करें। समझ रही है नगमा बहन? अगर आप ये कहेंगे कि मैं इसको नहीं मानती तो तब मैं आपको, तब आप मुझसे दूसरे का मुतालबा कर सकती हैं, लेकिन पहले आपको ये कहना होगा कि मैं इसको नहीं मानती, ये बात गलत है। तो अगर आप ये कहते दुर्र मंसूर में जो लिखा है वो गलत है, मुझे इब्ने कसीर दिखाओ, तब मैं आगे बढ़ सकता हूं। और अगर आप ये भी नहीं कहती कि दुर्र मंसूर में गलत लिखा है फिर भी मुझे दूसरा दिखाओ, तो ये मेरे लिए आर्गुमेंट हुज्जत नहीं है बहन। अब आप मुझे इसका जवाब दे दें कि क्या आप उसको गलत मानती हैं दुर्र मंसूर में जो लिखा है। अपना अनम्यूट करें, नीचे से जो माइक का बटन है वहां से अपना माइक खोलें, आपका माइक बंद है। जी नगमा जोहर बहन जी बताएं, आप मानती हैं वो गलत लिखा है दुर्र मंसूर में? तो जी जी बोलें। ठंडे हो जाए, हाँ पानी पी लें, आराम से बात नहीं करें। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी तो जज्बाती नहीं हो जाती तुरंत कि किसी को स्ट्रीम से हटा दिया, किसी को कुछ कह दिया, फिर माइक म्यूट म्यूट कर लिया, या कुछ बहुत सारी चीज। मतलब मैं आपकी तरह नहीं हूँ, थोड़ा है हूँ शांत। नहीं, अब आप विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। मैंने आपको नहीं नहीं पूरा नहीं, मैं मौका दिया टॉपिक हुआ है। उसी पे रहूंगी, बिल्कुल मैं सेम नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं टॉपिक उसी पे रहूंगी। आपने कहा ना, चले ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, दुर्रे मंसूर की बात मैं रख लेती हूँ आपके कहने के मुताबिक, चले ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि आपने कहा चले हलाल है मगर गंदा चीज है, ठीक, सबसे पहली चीज। तो आप ये मुझे हम्म, बताइए कि शराब के बारे में जो बात की है, शराब के बारे में हम्म। पहले तो इजाजत दी गई, लेकिन बताया गया कि इसमें नुकसान ज्यादा है। तो अब बंदा किस चीज को फॉलो करे? नुकसान ज्यादा, जो चीज ज्यादा की मिकदार में होती है उस चीज को फॉलो किया जाता है। ओके, मुझे आप ये बता दें, जब आप शराब का आर्गुमेंट रख रही हैं बहन, तो आप मुझे ये बता दें कि किस स्कॉलर ने किस किताब में शराब को हलाल कहा है, फिर उस पर बात हो सकती है आगे। एक मिनट, मैंने ये जब उससे शरीफ में भी मौजूद है कि शराब मतलब ये था, लेकिन फायदा और नुकसान बहुत ज्यादा है, तो इसलिए छोड़ना पड़ा। तो ये चीज है कि जिस चीज में नुकसान ज्यादा हो उस चीज को लेनी चाहिए, ठीक है। जो आप फायदे नुकसान की बात कर रहे हैं वो असल में उसकी उसकी जो है मनाफी से पहले की आयत है। उससे मनाफी के पहले की आयत आपको ये भी मिलेगी कि नमाज के करीब मत जाओ नशे की हालत में। तो लिहाजा वहां ये बताया जा रहा है कि जब आप नशे में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। लेकिन क्या आज आपको शराब पीने की इजाजत है? नहीं, क्योंकि वो बाद में बैन कर दी गई, पहले नहीं थी उस वक्त। अब आप मुझे ये दिखा दें कि ये जो काम है, नहीं सुन ले ना, मेरी बात सुन ले, आपका नेटवर्क इशू कर रहा है। अब आप मुझे ये बता दें कि ये जो काम है ये जो है बाद में मना कर दिया गया, ये गलत काम है, मुझे दिखाएं कहाँ लिखा है कि बाद में मना कर दिया गया, पहले अलाउ था। अब ये फिर से चली गई हैं, शायद इनका नेटवर्क का मसला हो रहा है। समीर भाई, मैं कुछ बात कर लूं, बहुत देर से बैठा हूँ। भाई आपसे मैंने ना उस मौजू पर बात करनी है, जो मेरा आज का मौजू है वो पीछे छूट गया। वही तो मैं मैं बोल रहा हूँ, मौजूद छोड़ के भाग गए आप। नहीं, मैं छोड़ के नहीं भागा, वो बहन आई है तो हेलो। बहन की मैं इतना उनका अदब कर रहा हूँ, उनका लिहाज कर रहा हूँ एक वुमन होने के ताल्लुक से, कि वो जिस मौजू पे मुझसे बात करना चाह रही मैं उनसे बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा टॉपिक आज अभी भी वही है और उसी पर मैं मजीद बातचीत करूंगा। तो बहन जुड़ के उनसे बातचीत हो गई। जी बहन, तो अब आपने जैसा कि खुद मान लिया दुर्रे मंसूर को आप कबूल कर रही हैं ना, सुने, दुर्रे मंसूर को आप कबूल कर रही हैं, तो यहाँ पे आर्गुमेंट खत्म हो गया। लिहाजा अब आपको ये कहना होगा कि हाँ, अगर आपका शोहर आपके साथ दुबुर से भी जमा करना चाहे तो आपको कोई एतराज नहीं, क्योंकि आप खेती हैं। जी अब मुझे पहले ये बताइए कि वहाँ दोनों लिखे हो तब दोनों पर डिस्कस कीजिएगा, सबसे पहली बात। क्योंकि लिखा हुआ है मतलब नहीं, देखिए शराब थी अब लेकिन नुकसान आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने खुद ये एक्सेप्ट कर लिया है कि चले मैं दुर्रे मंसूर को मान लेती हूँ, तब आपकी एक मिनट आर्गुमेंट ठीक है ना, की एक जरूरत मिनट नहीं सुनिए है। सुनिए सुनिए, वहां पे दो ऑप्शन आपने दिया हुआ अपने है, माइंड ठीक को है। एक्सेप्ट कर लिया है। मेरी बात सुनिए, वहां पे दो ऑप्शन दिया हुआ है कि ये गंदा चीज है और हलाल है। तो मैं गंदा चीज को क्यों छोड़ूंगी और हलाल को क्यों लूंगी? मैं दोनों चीज को फॉलो करूंगी मैं। ऐसा क्यों कि आप मतलब जिस पे आपकी बात बन रही है हलाल पे, तो आप हलाल की तरफ ले जाइएगा बात, और अगर गंदे चीज से बात बोले तो आप गंदे की तरफ मतलब बात ले ठीक है, जाइएगा। ऐसा नहीं अब ना है, आप एक काम अगर कीजिए, दोनों चीज को अब आप फॉलो। एक काम कीजिए, सुने, मैं अब आपको बता रहा हूँ, सुने,
मैंने मान लिया कि उसको गंदा, उनका जो अपना पर्सनल जो कॉल है वो ये है कि वो गंदी चीज है, लेकिन इस्लाम का कॉल ये है कि वो हलाल है। अब अगर आपका शोहर, समझिए, अगर आपका शोहर उस गंदी चीज को, उस गंदे काम को आपके साथ करना चाहे तो इस्लामिक नरेशन से तो वो हलाल है, तो क्या आप उसको पसंद फरमाएंगी? तो एक मिनट, उसको तो ये भी तो कहा गया है कि मतलब वो गंदा चीज है, तो आप इसको कॉल फॉलो क्यों नहीं कर रहे ये हैं? तो नहीं कहा गया कि हराम है, वो गंदा चीज होने के बाद भी करना चाहता है आपका शोहर, आप उसको अलाउ करेंगी? नहीं नहीं नहीं, आपको दोनों चीज फॉलो करना है। नहीं, आप देखिए, जब दो बात एक जगह जमा हो जाती है ना, तो आप एक बात नहीं रह सकते हैं, समझे? आप एक बात नहीं, आपके पास आपका नाम है एक्स मुस्लिम समीर, ठीक मैंने है, आप आपको बोलिएगा। इतने क्लियर वे में समझा दिया हूँ, सुने, इतना क्लियर वे में समझा दिया, आपको शायद समझ नहीं आया, मैं एक मिसाल देके समझाता हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते से जिससे आप जा रहे हैं, इसमें खड्डे हैं, लेकिन ये रास्ता भी वहां पहुंच जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। तो उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं तो इसी से जाऊंगी, खड्डे भले हो, मुझे जल्दी पहुंचना है, आप उस पर चलती हैं, तो क्या वो रास्ता वहां नहीं पहुंचेगा जहां आप जाना चाहती हो? वो बिल्कुल पहुंचेगा। उसमें खड्डे जरूर हैं, पर वो रास्ता जाता वहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली वही चीज है कि वो उसको गंदा फेल मान रहे हैं, ये उनका अपना पर्सनल कॉल है, लेकिन इस्लाम उसको हलाल करता है। तो लिहाजा वो गंदा काम आपको लग रहा है, पर आपके शौहर कहता है कि मैं हलाल है, मैं तो करूंगा, क्या आप अलाउ करेंगी? सिंपल सा सवाल है मेरा, हाँ या नाम जवाब दे दें। अगर देखिए, सबसे पहली बात चीज, अगर गंदा है तो दोनों चीज के लिए, हलाल है तो दोनों चीज के लिए। यहाँ पर्सनल बात कहाँ से आ गई, मुझे ये बताइए। अरे भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, अपना किसी का कॉल, किसी इस्लाम में कोई 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 उसकी मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर उनको जो इस बात को बता रहे हैं आगे रिवायत करते हुए कि हाँ ये एक गंदा काम है, ये नहीं करना चाहिए, वो ये भी नहीं कह रहे नहीं करना चाहिए, उससे भी ये कह रहे हैं कि हालांकि ये गंदा फैल है लेकिन हलाल है। वो उसको गंदा मान रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हलाल है इस्लाम में, अगर कोई करना चाहे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। तो अब आपका शौहर तो करना चाहता है, अब आप अलाउ करेंगी गंदा होने के बाद भी? मैं तो यही बात कह रही हूँ ना, आपके दोनों चीज, आपको आप दोनों चीज क्यों मान रहे हैं? आप एक चीज पे क्यों जा रहे हैं? चले, अब आप जलेबी बनाने लगी हैं, क्योंकि आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गई हैं, और लेकिन फिर भी उसके बाद आप जलेबी बना रही हैं। अब मेरा आपसे लास्ट आर्ग्यूमेंट नहीं होगा नहीं, ये, उसके बाद जो है ना, आप समझिए इस सुने बात सुने को, आप समझिए इस बात नहीं को नहीं यार, कि जब दो बहुत हो बात गया, एक जलेबी साथ मेरे सर जमा। में, अरे बहन प्लीज, दर्द हो गया मेरे सर में यार। आपने तो मुझसे अब से 1 घंटे पहले ही मुझे इस्लाम कबूल करवा दिया था, अब तो मैं मजीद आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। माय गॉड। देखिए, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछूंगा, उसके बाद हम आपसे इजाजत लेंगे। नगमा बहन, मुझे ये बताइए आप कि किसी भी वुमन को, महिला को सेक्स स्लेव बनाना, उसको मार्केट में बेचना, उसको दूसरे आदमी को देकर, पैसे लेकर के दूसरे को दे देना, फिर उसका उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना, आप इसको अच्छा मानती हैं? नहीं। अगर कोई ऐसा करे, आप उसको अच्छा मानेंगी? अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, आप, मैं समझ गई आप क्या कहना नहीं चाहते नहीं हैं, नहीं ठीक नहीं है, एक नहीं मिनट। नहीं 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 नहीं, हाँ या ना? एक मिनट, अच्छा नहीं ना, मानेंगी? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, नहीं, मेरे सवाल का आप नहीं जवाब दीजिए। नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मॉरलिटी में कोई इफ मैं बट नहीं आपसे होता। मैं सिंपल सी आपसे बात, दो जैसे सवाल आपने का, बोला, नहीं जैसे आपने नहीं बोला नहीं ईमानदारी नहीं, से कि आप उसे अच्छा नहीं मानती, एक मिनट, जैसे आपने पहले बोला उसे अच्छा नहीं मानती। दूसरा सवाल, अगर कोई ऐसा करे, आप उसके इस अमल को, इस काम को अच्छा मानेंगी या नहीं मानेंगी? हाँ या ना, बस। मैं क्या, मेरे पहले दो सवाल का जवाब दें, फिर मैं आपके सवाल का मैं जवाब देने के आपके लिए तैयार 5 हूँ, सवाल बिल्कुल। का जवाब दूंगा, नहीं पहले आप मेरे इस सवाल का नहीं जवाब दें जो मैंने पहले नहीं पूछा है। नहीं, मैं आपसे दो सवाल का जवाब पूछती हूँ, बस आप 100 सवाल मेरी का जवाब मैं खुद बहन, दूंगी मैं आपको। आपसे नहीं अदबाना, नहीं, बस आजिजाना, आप, नहीं नहीं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बहन जिस खुदा पर आप ईमान रखते हो, आपको आप, उसका नहीं वास्ता, नहीं नहीं, मैं क्या कर रही आप हूँ, आप ईमानदारी से बस, जवाब दें। आपको उन तमाम औरतों का वास्ता जिनको सेक्स स्लेव बना करके रात दिन उनकी इज्जतों के साथ खेला गया, जिनको मार्केट में बेचा गया, उनकी इज्जत और आबरू का वास्ता आपको मेरी बहन मुझे ईमानदारी से जवाब दें कि अगर ऐसा आप कोई करता है तो वो आपके नजर में मुझे, कैसा इंसान है? देखिए एक मिनट, दो, मैं अभी यहीं पे बैठी हूँ, ठीक है, अपने दो सवाल का जवाब दे। मैं आपके दो नहीं, मैं आपके 4 सवाल का जवाब दूंगा, ये एक्स मुस्लिम समीर का वादा है, और आपसे मजीद कोई सवाल नहीं सवाल करूंगा। पहले होगा। मेरा पहला सवाल आया है, उसका जवाब मुझे दें।
अगर कोई ऐसा करे कि वो महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाए, उनके साथ जो है जिस्मानी ताल्लुकात कायम करे और उनको मार्केट में बेचे और दूसरे लोगों को दे, और जो लोग खरीदे फिर वो उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और फिर वो किसी और को बेचे, वो उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए, जो लोग ऐसा करें आप उनको अच्छा मानती हैं या बुरा मानती हैं? ठीक है, मैं जवाब दे दूँ। ठीक है, मैं जवाब दे दूँ इसका। ठीक है, अगर औरतें दर बदर ठोकर खा रही होगी, उसका निशाना इधर जा रही होगी, क्या अगर उसके किसी घर में शादी मिल गया हो तो ये बेहतर है या गलत है? ये गलत है। ये इसलिए गलत है। अच्छा, एक मिनट, अगर मतलब आप सुन ले एक मेरी मिनट बात, अब नहीं नहीं, यार, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अपना सवाल करोगी जब मैं जवाब दूंगा फिर भी इसमें बोलोगी? हद बात है। मैं आपको मौका दे रहा हूं बात करने का, इसका मतलब ये थोड़ा है ना कि आप मेरे को बात ही नहीं करने दोगे, अपनी जवाब, अपना ही सवाल और अपना ही जवाब। आपने सवाल कर लिया, मैंने जवाब दिया, मुझे एक्सप्लेन करने दें। अब आप खामोश रहें, सुन ले मेरी बात को। अगर आपका घर खत्म हो गया, आपके शौहर मारे गए, आप रोड पर है, आपका कोई सहारा नहीं है, मैं आपको लेकर के आ गया अपने घर, तो क्या और मैं आपके साथ ये सलूक करूं, आप इसको पसंद करेंगी? क्योंकि आपको दर बदर की ठोकर खाने के लिए मैंने नहीं छोड़ा, बल्कि 50 लोगों के इस्तेमाल के लिए मैंने आपको रख लिया। ये आपके लिए बेहतर चीज है? That's all, my lord. That's all. अरे समीर भाई, क्यों बहन के पीछे पड़ी हो आप? बल्ले तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं हम, बोलो तुम। यार आमिर हक भाई से तो आपकी बनती नहीं है, पहले मुझसे बात कीजिए आप। कबूतर चल, अपने आमिर हक को लेकर के आना इधर। क्यों नहीं लेके आता उसको? उसको बोला डंगर को आया इधर अपने बाप से बात करने। चल निकल यहां से, कबूतर कहीं का। ला उसको, उसको बोल, समीर बैठा है, लिंक डाल करके देख, इधर बाहर लिंक डाल करके बैठा है, उसको बोलो आ जाए। समीर बैठा है स्ट्रीम में, आ जाए, अभी बात कर लूंगा इसी मौजूद पर मैं उससे। आप बार बार ड्रॉप हो जा रही हैं, आपने मुझे जवाब नहीं दिया है अभी तक मेरे सवाल का। तो वो इन हो गया था इसके लिए। मैं समझ रहा हूँ आपका नेटवर्क इशू कर रहा है, लेकिन आपको मुझे बताए कि ये अच्छी बात है कि अगर मैं आपको सहारा देने के नाम पर आपको 50 लोगों के घर में भेजूं, आपकी रकम लूं, आपको बेचने का काम किया जाए, आप इसको पसंद करेंगी? मुझे बताइए आप कि कौन ने ऐसा, मतलब आप जिस जो हदीस की मतलब ये कह रहे हैं, वो हदीस मुझे आप दिखा दीजिए एक बार, कि आप जिस हदीस के मुतालिक ये बात किए गए है कि एक औरत को 50 घर भेजा गया हो। पहले मुझे ये बताइए पहले। ओके, अगर मैंने कोई महिला मेरे कब्जे में है, 50 घर, हाँ। सुन ले, 50 क्या 100 भी हो सकते हैं, कोई लिमिट थोड़ा ही ना, कोई लिमिट थोड़ा तय की इस्लाम ने। ठीक है, आप मुझे 50 ही दिखा दे, मैं मेरे 100 की नहीं है तो आप 50 ही दिखा दे। भाई अब मैं जब जवाब दे रहा हूँ तो सुन तो ले, फिर मैं दे रहा हूँ। ठीक ठीक। अगर मेरे कब्जे में कोई महिला आई और मैंने आगे उनको मार्केट में बेच दिया, और जिन्होंने खरीदा उनको ये हक है पूरा पूरा कि वो भी उसको जब चाहे तब आगे बेच दे, और जो उनसे खरीदे उनको भी ये हक है कि वो आगे बेच दे, क्योंकि वो उसकी मिल्कियत है। आप वहां 50 की गिनती पूरी करेंगे या फिर ये देखेंगे कि उसको बार बार बेचा जा रहा है? आप मुझे एक बार वो हदीस दिखा दीजिए जहाँ पे औरतों को 50 बार बेचा गया हो, आप मुझे प्लीज। 50 बार की संख्या ही चाहिए आपको? हाँ 50 दिखाइए बार मुझे की संख्या 50। ही चाहिए। उससे कम अगर एक किसी महिला को एक बार बेचा गया हो तो वो आपके लिए बुरा नहीं है? अगर किसी के घर में जरूरत हो कि हाँ मेरे घर में कोई औरत नहीं है, काम काज करने वाली नहीं है, और मैं उसे बतौर एक इज्जत के साथ काम काज नहीं, सुना सुना, हेलो, काम काज के लिए तो मुझे कोई मसला ही नहीं है। अगर आपने वर्क प्रिजनर बनाए हैं और आप उनसे घर का काम काज करवाना चाहते हैं, जी 1 सेकंड, आप अगर आप उनसे घर का काम काज करवाना चाहते हैं, रात दिन उनको रखे, लेकिन काम काज के लिए रखते थे उनको या फिर उनको डिंग डोंग के लिए रखते थे? हाँ चलिए ठीक है, जो भी है, लेकिन उसको सर छुपाने के लिए साया देते थे कि नहीं देते थे, मुझे ये बताइए पहले। सर छुपाने के लिए साया दे करके आप किसी औरत की असमत लूट सकते हैं, एक ग्रुप में भी लूट सकते हैं, 10-10 एक साथ भी लूट सकते हैं, दिन बांध करके, और आगे उसके बेच सकते हैं। ये आपके एक मिनट, काम है। अच्छा सुनिए, मोमिना औरतें थी या काफिरा औरतें थी, पहले मुझे ये बताइए।
तो मतलब काफिर औरतों की इज्जत नहीं होती। just I want to say, we are on a high discussion. Please give me just 1 minute. काफिर औरतों की इज्जत नहीं होती इसका मतलब। अच्छा मुझे ये बताइए कि काफिरा औरतें ये थी या मोमिना औरतें थी? अगर मोमिना औरतें तो वो खुद इज्जतदार है। मैं कह रहा हूँ वो काफिर थी, उनकी इज्जत नहीं होती। काफिर औरतें थी तो वो किसमें मतलब पकड़ी गई थी? जंग में पकड़ी गई थी। जंग लड़ने नहीं आई थी वो, उनको उनके घरों से पकड़ी गया। हाँ तो वो ऐसे, एक मिनट, कोई इज्जतदार औरत कभी जंग में पकड़ी गई है? फिर उसके साथ ऐसा 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 हुआ है? मुझे ये बताइए। मारियल कितना इज्जतदार नहीं थी? मारियल कितना इज्जतदार थी या नहीं थी? हाँ या ना जवाब दे। हाँ ठीक है। मारियल कितना इज्जतदार थी या नहीं थी? ठीक है नहीं, ये बताएं कि हाँ इज्जतदार थी या हाँ नहीं थी? इज्जतदार, हाँ इज्जतदार थी। इज्जतदार थी तो फिर सेक्स स्लेव क्यों थी? तो आप मुझे बताइए वो किसकी बेटी थी, पहले ये बताइए। किसकी बेटी थी? बेटी को छोड़ो, हाँ वो सेक्स स्लेव किसकी थी वो बताइए मुझे आप। चलो ये बताइए मुझे कि वो बेटी किसकी थी, पहले ये तो बताइए। अरे भाई वो किसी की भी बेटी हो, मुझे उससे क्या वो मुराद है? वो सेक्स स्लेव किसकी थी? एक मिनट, वो भी जंग में पकड़ी गई थी, अपना समझ लीजिए, वो जंग में पकड़ी गई थी बाद में अल्लाह। मारियल और कितने जंग में पकड़ी गई थी? एक मिनट, मारियल कितने जंग में पकड़ी गई थी? अच्छा एक मिनट, वो आर यू बेटी किसकी श्योर? थी मुझे बताइए। नहीं, आर यू श्योर मारियल कितने जंग में पकड़ी गई थी? आई थिंक कोई एक और मतलब थी, क्या नाम था उसका? मैं मारिया अल किप्तिया की बात कर रहा हूँ। मारिया अल किप्तिया किसी भी जंग में नहीं पकड़ी गई। वो एक किप्ती बादशाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को तोहफे में दी थी, जिसके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत हफ्सा के घर में जाकर के डिंग डोंग किया, जिसका पता आयशा और हजरत हफ्सा को जब पता लगा तो वो उससे नाराज हो गई। और इसके बाद सूरह तहरीम की आयत नाजिल हुई। जब रसूलुल्लाह ने उसको अपने ऊपर हराम कर लिया इनके नाराज होने के बाद, तो अल्लाह ने सूरह तहरीम की आयत नाजिल करके ये बताया कि ए रसूल, तुम क्यों हराम करते हो उस चीज को अपने लिए जो मैं हमने तुम्हारे लिए हलाल की है। उसके बाद इसीलिए तो रसूलुल्लाह ने कहते हैं, सुनिए दोबारा फिर से उसके साथ ताल्लुक कायम किया और फिर उसके सुनिए बाद उससे सुनिए कासिम सुनिए, पैदा हुआ। आपके ठीक, एक मिनट रसूलुल्लाह सुनिए। की गुलाम लौंडी थी मारिया अल किप्तिया, जो किसी जंग में नहीं पकड़ी गई थी, बादशाह ने उसको गिफ्ट दी थी। अच्छा एक मिनट सुनिए, इसी को कहते हैं कि मतलब कुरान की आयत कुछ और दलील कुछ और दे बंदा। वाह। आप जो बोले ना कि वो हराम करा, वो मैं शहद के आपसे बारे में, कुरान की ठीक है आयत सब। में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को ये बता दें आप कि आप इनके मुतालिक क्या कहती हैं, जिनको सेक्स स्लेव बना करके रखा एक जाता मिनट था, एक मिनट एक उनके मिनट साथ एक सेक्स किया मिनट, जाता था, फिर उनको इस बात मार्केट में को बेचा ना, जाता इस था। बात बात एक खत्म। मिनट, आप मुझे बोलने देंगे? आप मुझे बोलने देंगे अब? नहीं, मुझे इसका जवाब देना पहले आप, फिर आप बोलते हैं। मुझे इसका जवाब दो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बस एक मिनट, मेरी बात, बस एक छोटी सी बात सुनिए, मेरी एकदम छोटी सी बात, ठीक है? आपने जो भी कुरान की आयत का जो कहा है कि ये कुरान की आयत उतरी है, वो सबसे पहली बात शहद के बारे में, ठीक है? कि शहद के आप क्यों हराम करते? पहली बात तो ये कि अरे आपने भाई मेरे कुरान को की आयत को लेना नहीं गलत है पेश वो। कर दिया। अरे सुने मेरी भाई, सुने मेरी बात। आप क्या आप तफसीर में कसीर को मानती है ना? फिर हाँ ड्रॉप दिखाइए करो। मुझे, उसी में दिखाइए आप। हाँ